before this we have had 7 classes. 7 classes में atmosphere क्या है, atmospheric dynamism, atmospheric terms have been dealt with. I hope you have some idea about that. If not complete, I hope you would have looked at it. अगर बहुत समझ नहीं आया तो don't worry, I will be talking more about it. You will understand it better. Is everyone okay with this? तो पहला तो ये है. उसके अलावा नमस्ते to all, welcome, good morning, all students who joined in. So we were doing oceanography till yesterday. What we have done, so people who joined in just for this advanced classes, who thought कुछ नया हो रहा है, so information for them. So we started the course on the in the month of March, first week, around 5th. Jai Hind Madhukar. And since then we have been talking about the basics of geomorphology, around 6 lectures, oceanography around 6 lectures, climatology around 7 lectures. So basic में क्या होता है? We understand the vocabulary of the subject, we understand the basic books of that subject. We also look at like what are the basic readings. And I'm very sure that I've pushed you into making your diagram books, looking at the dictionary and other things. So it makes a lot of sense कि अब हम एडवांस शुरू कर सकते हैं. एडवांस क्लाइमेटोलॉजी विल बी एज पर द सिलेबस व्हिच आई एम गोइंग टू शो यू. सो खुशी सिंह सर, मुझे पूछना है कि ज्योग्राफी डिक्शनरी पेंगुइन का ऑफलाइन आउट ऑफ स्टॉक है तो क्या करें? ठीक है, तो यू कैन टेक अ सॉफ्ट कॉपी. अदरवाइज अगर पेंगुइन नहीं है तो ऑक्सफोर्ड का अवेलेबल रहता है. यू कैन टेक ऑक्सफोर्ड आल्सो. इज एवरीवन ओके? नाउ समबडी शेयर्ड yesterday on the telegram group, somebody shared a dictionary of human geography. पहले तो समझिए, I don't know what that person academic background is. That is not the dictionary of physical geography. That is the geography dictionary of human geography. That is considered as an advanced commentary on geographical issues, human geography issue. So that may not necessarily be needed. वहाँ पे share हुआ है, that's okay, but don't worry about that. That may not necessarily be needed. ठीक है? Is that okay, everyone? Sir, cold air masses are marked by instability and atmospheric turbulence. Not able to understand. मेरा I think अब तो बहुत टाइम हो गया. ऐसा तो मैं कोई क्वेश्चन लेता ही नहीं, अब तो एडवांस में बात कर रहा हूँ. आपने जहां से देखा उसे मार्क करिए, हाईलाइट करिए, पोस्ट करिए. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, व्हाट डिड यू नॉट, है ना? आप कुछ भी कर लेते हैं, हर क्लास में ऐसा करते हैं, मत करिए. ये दैट. सो शिवम सिंह हैज जॉइंड अस लेट. उनका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं. क्या है ये पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं, बट लेट अस सी. सर, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी दैट condensation takes place when the temperature of the air reduces to dew point with the volume remaining constant, but an air parcel rising continuously expands, which increases its volume. My question is how the dew point will occur if volume is increasing, which in turn increases the moisture holding capacity and temperature is decreasing. तो जो शिवम, आप इस कोर्स को पूरा करते रहिए, आपको आगे बताया जाएगा एडायबेटिक प्रोसेस और डायबेटिक प्रोसेस क्या होता है. ठीक है, तो जितने भी गैस लॉज होते हैं वो एट अज्यूमिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं, लेकिन अगर आपकी वॉल्यूम ही एक्सपैंड करने लगेगी तो वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉजेस कूलिंग. ठीक है, सो आप अपने लॉजिक पे चल रहे हैं, वो डायबिटिक है, एडायबिटिक है, तो इसकी जगह आई वुड रिकमेंड आप उस क्लास को आगे करें. आपको एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी बताया जाएगा. देन यू विल मेक सेंस ओवर हियर. सो देयर एनी टाइम व्हेन एयर एक्सपेंशन स्टॉप्स एंड डिक्रीज इन टेंपरेचर डोमिनेट. ये ऐसे थ्योरेटिकल लिटरेचर का टॉपिक नहीं है. अभी आपका विजुअलाइजेशन ऑफ द टॉपिक इज अ लिटिल लो. तो जो आपकी क्लाइमेट की क्लासेस हैं, जब एयर पार्सल आएगा, एयर पार्सल क्या होता है, लैप्स रेट क्या होता है, वो पढ़ेंगे तो ये अपने आप सेंटेंस भी समझ आ जाएगा. यू वुड नो अबाउट इट. डू वी गेट दैट? तो ये तो हुआ शिवम के लिए एडवाइस. बाकी लोगों के लिए, जैसे शिवम ने अपना क्वेश्चन पूछा कि सर ये है, यहाँ पर मुझे डाउट है, आप प्लीज क्वेश्चन पूछे तो समझ में आता है. आपने कहाँ क्या पढ़ लिया, इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लिया, तो दैट इज नॉट अ क्वेश्चन व्हिच कैन बी आंसर्ड. नाउ क्लाइमेटोलॉजी सिलेबस. सो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर की हमने बात की. टेम्परेचर, diabetic change of temperature vertically, horizontally, adiabatic, advection, convection, all that we talked about. Then we talked about the 7 pressure belts. Earth ka heat budget we have talked about, and atmospheric circulation where we did the tricellular model. Remember this? तो यहाँ तक अगर आपने किया है, these are the first 5 lectures. अगर आपने 5 lectures कर लिए हैं तो you would understand about expansion, contraction, volume, temperature, pressure आ जाएगा. 6th lecture was a special lecture where we took a recap of our basic lectures and we talked about humidity also, humidity, rainfall and types. एक स्पेशल एरिया है, जैसे अभी शिवम ने पूछा. शिवम, एक डिबेट है क्लास में, वन ऑफ द क्लासेस ऑन एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी. आप भी वो देखेंगे, बाकी लोग भी देखेंगे. सो दिस हैज बीन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिटिल टेक्निकल, जिसमें वी सॉ समथिंग अबाउट राइजिंग, कूलिंग, एक्सपेंशन एंड एडायबेटिक लैप्स रेट्स. आफ्टर दैट वी केम टू द विंड्स, प्लैनेटरी एंड लोकल विंड्स. तो ये हमारा काम हो चुका है. अब हमने लास्ट जो भी एक क्लास किया था, व्हिच आई वांटेड टू डू, सो दैट आई डिड एयर मासेस पर हम डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट आर एयर मासेस, ह्यूज वॉल्यूम्स. वी विल कंटिन्यू विद दैट. सो एवरीवन, in advanced classes we have 3 classes. So today we will be talking about air masses, fronts, temperate and tropical cyclones. Do we get that? After that we will go into climatic classification, Köppen, Trivarta, Thornwind. And third thing is global climate change, applied climatology, urban climate. अब मैं बताना चाहता हूं कि this part will be done along with the environment lecture. ठीक है,
तो ये इन्वायरमेंट के साथ होगा। आई होप पीपल हु आर अंडरस्टैंडिंग माय एनवायरमेटिक्स क्लासेस एंड सेशंस, वहां भी आप देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे हमने काफी बात किया है, रिस्पॉन्स ऑफ मैन इन क्लाइमेट चेंजेस। सो इफ यू वर प्रेजेंट इन यस्टरडेज क्लास, वी वर टॉकिंग अबाउट forest landscape restoration, we were talking about techniques how to deal with that, we've already talked about carbon sequestration, we've talked about global Paris Accord, तो वो सब उसी में मिला होता है, that is it. अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी और अर्बन क्लाइमेट में आता है कि आपका अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है, दैट इज पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, सो आई विल बी टेकिंग दैट ओवर देयर। जेट स्ट्रीम्स कराया जाएगा आपको। मॉनसून्स का जो पार्ट है, मॉनसून्स का पार्ट अलोंग विद एल नीनो, मॉनसून एंड एल नीनो, these parts will be just discussed, their details come in paper 2 where we talk about Indian monsoon, ठीक है, बट आई विल बी टॉकिंग अबाउट देम हियर। तो मॉनसून्स को पर से, मॉनसून को एक मैक्रो ग्लोबल फिनोमिना की तरह आई विल बी टेलिंग यू, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉनसून्स इन द रियल सेंस ऑफ द एग्जामिनेशन, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? मोर इंपॉर्टेंट इज द मॉनसून्स ऑफ इंडिया, सो दैट इज डन इन इंडियन ज्योग्राफी, पेपर 2 में कराई जाती है। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दैट? सो दिस इज व्हाट टॉपिक्स ऑफ एडवांस क्लाइमेटोलॉजी आर। पीपल हु आर न्यू टू माय कोर्सेज, आई स्टार्ट माय क्लासेस एंड आई कीप द सिलेबस इन फ्रंट एंड आई गो वन बाय वन। सो बेसिक्स हमने कर लिया था, बेसिक्स के बाद अब हम यहाँ पर आए हैं वेयर वी आर डीलिंग विद एडवांस क्लाइमेटोलॉजी। Similar way, we have planned for geomorphology. The basics have been done. In fact, I think geomorphology में 2 classes हुए हैं, 6 की जगह 4 ही हुई हैं. So I'll have to increase classes in the advanced geomorphology. Regarding oceanography, I think we are fine. We have reached even ocean currents तक हमने कर लिया है. So when I go into that, there will be 3 advanced oceanography classes also. Once these are done, then we can easily get into our biogeography as well as environment geography. Is everyone okay? Just to establish the link, just to give you the confidence कि हाँ ये syllabus entries हैं, how they are being done. So I thought first 10 minutes of the class can be devoted to that. So that is why I have done that. Now I would want to start the class if you do not have any other doubt. और doubt का फिर से remind करना, whenever you have a doubt in a book, please identify the whole para, उसका एक screenshot लीजिए, underline करिए where you have the doubt and what you understood out of it, है ना? जहाँ पर जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आई सेड आप थोड़ा सा अर्ली हैं, वो कोर्स में आपको क्लियर हो जाएगा, उसी पर बात होने वाली है। when you understand diabetic and diabetic, it is not the time to repeat that over here. But अगर कोई छोटा मोटा डाउट होता है which is related to the current class, would be solved immediately. Do we get that? So that is there. तो डू यू रिमेंबर एयर मासेस? जल्दी से बताइए एयर मासेस क्या होते हैं। तो अभी हम पहला काम शुरू कर रहे हैं, एयर मासेस एंड फ्रंट्स। एंड पीपल हु वॉक इन न्यू, अगेन टेलिंग यू, फर्स्ट 10 minutes आर योर मिनट्स, यू कैन आस्क मी, फर्स्ट 5 समटाइम्स 10 minutes आर योर मिनट्स। यस, सो व्हाट आर एयर मासेस? व्हाट आर एयर मासेस? बिग पार्सल एयर, सो पार्सल ऑफ एयर नहीं कहेंगे मधुकर, हमने बहुत क्लियरली पार्सल ऑफ एयर को छोटी चीज कहा है। सो दीज आर ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ एयर स्ट्रेचिंग फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप, ठीक है, ट्रोपोपॉज तक। अगर हम पार्सल की बात करते हैं तो इफ यू अटेंडेड माय क्लासेस, हमने एयर पार्सल को राइज कराया था जब हम एडियाबेटिक समझा रहे थे, वो एयर पार्सल था। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल पीपल नॉट टू यूज द वर्ड पार्सल फॉर एन एयर मास। एयर मास बड़ी चीज होती है, ह्यूज वॉल्यूम्स, और बहुत से लोग उसे मास कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं उसे कहना चाहूंगा 3 डायमेंशनल ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ एयर इन अ गिवन रीजन, ठीक है। मेगा कह रहे हैं ओरिजिनेट्स ड्यू टू होमोजेनियस कंडीशन ऑफ एन एरिया, तो मेगा ये भी गलत है। सो आई एम सॉरी, आई एम करेक्टिंग ऑल ऑफ यू। ये नहीं होता कि वो होमोजेनियस कंडीशंस ऑफ एन एरिया से ओरिजिनेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ एयर extending from the surface to the tropopause, having fairly uniform physical properties at a given height. Fix है, सोच के बोलिए, choose your words, get more marks. Be careless with your words, they change the meaning. Okay, they have homogeneous properties. They have homogeneous property, and I told you with vertical नहीं, horizontally homogeneous properties are which properties? Physical properties like temperature and humidity. Then you can say these properties are acquired. These properties are acquired over a period of time by lying upon or being in contact with certain suitable areas called the source regions. ठीक है, do we get that? खुशी कंसिडरेबल एरिया आपने लिखा है, वहां मैं चाहूंगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जरूर स्पेसिफाई करें, और कंसिडरेबल एरिया की जगह बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट एयर मास, तो आप लिखिए ह्यूमिडिटीज आर यूनिफॉर्म ओवर इट्स एक्सपेंस, पूरा का पूरा जहां तक है, ओवर इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। So I think my class should graduate now to understandable language, because धीरे धीरे आपके आंसर्स उस लेवल पे आने वाले हैं कि आप मुझे सबमिट भी करना शुरू करेंगे। इन द बेसिक लेक्चर्स आई डोंट टेक दोस सबमिशंस बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट एडवांस में तो मैं सबमिशंस भी लेने वाला हूं, तो उससे पहले आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी तो बेटर रहेगा ना। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? चलिए, एंड यू कैन सी अच्छी लैंग्वेज डज नॉट मीन फ्लावरी बनावटी लैंग्वेज, इट सिंपली मींस अ लैंग्वेज दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। चलिए आगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एयर मास एंड फ्रंट्स वी आर डन। तो ये पहचाना हुआ लग रहा है कि नहीं कुछ? हाँ सर, ये तो हमने बनाया था सर, आपने भी बना दिया, गुड। सो कैन आई से सम कोड्स आर देयर? पी टी पोलर ट्रॉपिकल, सी टी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल। सर ये तो हमने भी बनाया था, तो फिर सर पहले क्यों बनवाए? तो आप स्लाइड में दे रहे हो, बिकॉज यू मेड इट, बिकॉज यू ड्रॉ इट, वो आपके दिमाग में रजिस्टर हुआ, इसलिए किया। फिर एक हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट है। व्हाट इज दिस हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट?
एंड व्हाट इज दिस इक्वेटर? इक्वेटर पर, इक्वेटर के आसपास कौन से एयर मास होंगे ट्रॉपिकल बेल्ट में? जल्दी से बताइए। सीटी होगा एवरीवन, एम्प्टी एवरीवन, एम्प्टी, डू वी एग्री? और कौन सा होता है ऊपर जाएंगे तो? पोलर, सीपी एमपी, सीपी एमपी, बोथ हेमिस्फीयर्स में ये मिलेगा आपको। इजी टू अंडरस्टैंड और डिफिकल्ट? सर ये तो हम समझ सकते हैं। एंड वी टोल्ड यू कि मिड लैटिट्यूड में, मिड लैटिट्यूड्स में फ्रंट नहीं होता, वहां पर क्या होता है, सॉरी एयर मास नहीं होता, दो ज्यादा अटैक जोन्स, वहां पर फ्रंट होते हैं। डू वी अंडरस्टैंड? सो वी सेड 0 to 30 ट्रॉपिकल एयर मासेस, 60 to 90 पोलर एयर मासेस, और इनके बीच में क्या होता है? फ्रंट। एवरीवन ओके? कैन वी सी दैट इन द फिगर आल्सो? वुड यू वांट टू ड्रॉ दिस इन योर डायग्राम बुक? क्लियर भी हो जाता है ये सुन। अच्छा एक और चीज है, इन्होंने यहां पर ए कर दिया और इसको ए कर दिया, 90 डिग्रीज की लाइन को, सॉरी नॉट हियर, दिस इज ए, 30 60 90 ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज सी ए का मतलब क्या है? सी इज कॉन्टिनेंटल, ए स्टैंड्स फॉर अंटार्कटिक। नहीं नहीं नशे में मत रहो बेटा, आर्कटिक ऊपर होगा। और यहां पर क्या किया? सी ए क्या है? कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। समझ में आ गया? I have an objection. I have an objection to this. My objection is, why do you want to treat Arctic and Antarctic separate? Why don't you call them polar? That is objection number one. So they are unnecessarily distinguishing between them. और इनका ये कहना नहीं नहीं ये बहुत ठंडा होता है, ये थोड़ा कम ठंडा होता है, इनके बीच में भी एक फ्रंट बन जाता है। इसलिए इन लोगों ने कहा कि नहीं इसमें भी हमने कुछ डिफरेंस देखा। Is everyone okay with my objection? And is everyone okay with their explanation? They are saying you are to saying front there, but हमको यहाँ पर भी एक छोटा सा फ्रंट दिखाई दिया है। So that means polar could not be considered as this thing. चलिए मैंने मान लिया। इज एवरीवन ओके विद एक्सेप्टिंग द एक्सेप्शन? भाई जहां पर भी डिफरेंट ऑफ एयर मासेस होगा वहां पे वो बन सकता है कि नहीं बन सकता? ठीक है। सविन सिंह तो कहीं पर ये लिखते हैं कि रिमेंबर दिस इज विच एयर मास? ट्रॉपिकल एयर मास, ईस्टर्लीज चल रही है और यहां पर भी ईस्टर्लीज चल रही है। तो उन्होंने कहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की एयर भी तो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो आईटीसीजेड इज आल्सो अ फ्रंट। आईटीसीजेड भी फ्रंट है क्योंकि दो एयर मासेस मीट कर रहे हैं। सो नाउ माय ऑब्जेक्शन इज भाई बोथ आर ट्रॉपिकल एयर मासेस, हाउ कैन देयर बी अ फ्रंट? This is, I understand they are tropical air masses, but थोड़ा तो difference हो सकता है northern hemisphere air, southern hemisphere air in terms of physical properties. Maybe southern hemisphere is more water covered, तो उसमें थोड़ा सा moisture ज्यादा होगा या नहीं होगा? तो मेरा कहना है जबरदस्ती तो आप कुछ भी कर लो, ठीक है, मान लिया इधर भी एक फ्रंट हो सकता है, इधर भी एक फ्रंट हो, जब इधर मान लिया तो इधर भी मान लेंगे। First of all, do we understand what is front? Front is the transition boundary between two contrasting air masses, but it is not very fair. It is not very fair to contrast. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा these are whites, Europeans, these are Africans, and you are contrasting them. ठीक है। अब आप यहां से दिल्ली में आके दो इंडियंस को पकड़ा और उनको कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो, इज इट फेयर? वो बोला देख तेरे को यू नीड दैट, व्हाट इज दैट क्रीम कॉल्ड, नाम बदला उसका, फेयर एंड लवली, जिसका नाम बदला है फेयर एंड ग्लो चल रहा नहीं, ग्लो एंड लवली, फेयर हटाना तो हमको वर्ड ग्लो एंड लवली, तो एक को कहा तुम ग्लो एंड लवली लगाओ, क्यों लगाओ भाई? अब इंडियंस में ही हम अपने स्किन टोन में डिफरेंस करने को सुपीरियरिटी फील कर रहे हैं इंडियंस में, दैट्स वेरी स्टूपिड थिंग और नॉट? यस सर। टेक टू पीपल फ्रॉम केरला, अब तुम्हारा स्किन टोन देखना है। Yes, take two people from Kashmir, तुम्हारा स्किन टोन देखना है। Take two people from North East, तुम्हारा स्किन टोन। Take two people from Gujarat, your skin। खाली बैठे हो क्या? And change तो मिल जाएगा। Now tell me, why would two people in Kerala be different? Not because of their skin color, but because of their genetics. True or not? थोड़ा सा तो डिफरेंस मिल सकता है ना, because of their genetics, थोड़ा तो डिफरेंस मिल जाएगा। Otherwise तो हम सब एक ही जैसे दिखते हैं। Yes or no? So stretch of imagination. If you ever get somewhere this written as that fronts are found at equatorial front, take it with a pinch of salt. ठीक है यार, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट होगा। रियल फ्रंट असली कहां पे बन रहा है, जिसे बैटल ग्राउंड कहेंगे? 30 to 60। इज एवरीवन ओके विद दैट? मिड लैटिट्यूड आर द बैटल ग्राउंड, दे आर द कुरुक्षेत्र ऑफ द पोलर एंड द ट्रॉपिकल। अच्छा क्या पोलर और आर्कटिक में भी बन सकता है नहीं बन सकता? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बट वो भी वीक होगा। assuming that you are creating Arctic and Antarctic as a separate air mass. Is everyone okay? I took 10 minutes for the recap of what we had done पहले। सर 60 को पोलर लिया है, खुशी मतलब इससे ज्यादा मैकेनिकल आपकी क्वेश्चनिंग कब खत्म होगी मेरे को समझ में नहीं आता खुशी। सर 60 को पोलर कैसे ले लिया सर, ये तो बहुत गलत बात है बेटा, ये ऊपर नीचे शिफ्ट होते रहते हैं, कोई ऐसा लाइन है क्या बात कर रहे हो? ये फ्रंट भी तो शिफ्ट होता रहेगा, एयर मास है। सर 60 को लिया हुआ तो बिल्कुल लाइन पे लगे हुए, हमेशा क्वेश्चन इतना मैकेनिकल आता है, अब तो बड़े हो जाइए। कहाँ लिया 60 को? सर 60 को पोलर लिया, यार ये 60 है, ये पोलर है, यहाँ पर आया हुआ है, क्यों? यहाँ पर लैंड है, साइबेरिया है ये। थोड़ा सा भी रियल वर्ल्ड से ना वो करेंगे। मैंने कहा ना सर हमने लाइन पढ़ी, इस लाइन का मतलब बता दीजिए। यस, मैरीटाइम पोलर, बताइए मैरीटाइम पोलर कहां पर है? ये तो 60 को टच भी कर रहा है। तो उसने कहा कि ये 60 के आसपास का जो बेल्ट है यहाँ पे पोलर, मैंने भी तो यहीं पे बनाया भाई। क्या ये नहीं कह सकता हूँ कि विंटर्स में ऊपर होगा, समर्स में नीचे होगा? नहीं होता, ये होता है,
अगर हम ये अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आई एम वेरी वेरी क्लियर, द एडवांस क्लाइमेटोलॉजी क्लासेस आर नॉट फॉर यू। आई एम सॉरी भाई, अगर हम इतना नहीं समझा पाए तो आई हैव फेल्ड, दैट मींस अगर आप अभी भी क्लाइमेटोलॉजी में यही समझे हो कि ये वैल्यू इससे डिसाइड होगा 23.5 पे कैसे लिख दिया एंड ऑल दैट, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इक्वेटर अगर कहीं पर लिखा आ गया तो कर देंगे। मधुकर क्या यू नॉट फेल, पता नहीं मधुकर, जब क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे तो हमें लगता है कि हम फेल कर रहे हैं और पब्लिक हमसे मतलब ऐसे वाली बात कर रही है जिसका मतलब उससे ज्यादा मैकेनिकल कुछ नहीं हो सकता कि सर वो तो 60 पर लिखा भाई, ये सारे के सारे बेल्ट, ये सब बेल्ट है ना, अभी भी बताया था, पहले भी बताया था, सिंपल थिंग, ये सारा एरिया है भाई, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, शिफ्ट हो सकता है, बट ब्रॉडली इसमें कौन सा एयर रहेगा, वार्म एयर रहेगा, इसमें कौन सा रहेगा, कूल एयर रहेगा, एंड दे हैव क्रिएटेड अ थर्ड कैटेगरी ऑलमोस्ट एट द पोलर रीजन व्हिच इज देयर कोल्ड। समझ में आ गया? तो ये है, तो 60 के ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और ये फ्रंट का भी कोई फिक्स एड्रेस नहीं है। डू वी गेट दैट? सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। So that was my first objection. My second objection is continental Antarctic। तो मुझे समझ में आता है ये continental Arctic क्यों कह रहे हो, कम से कम इसे MA तो बोलो, आर्कटिक में तो लैंड ही नहीं, आर्कटिक डजंट हैव लैंड, सो एटलीस्ट कॉल इट MA। सर ग्रीनलैंड होगा ना, अच्छी बात है यार, यू पीपल आर थिंकिंग दैट्स वेरी गुड। सो ग्रीनलैंड को तो मैं CP मानता हूँ, डोंट आई कंसीडर इट CP, डोंट आई कंसीडर कनाडा एंड साइबेरिया CP? So can you understand that whatever is in the book has to be understood in a broader context of this thing कि वो ऐसा कह रहे हैं। So जम्मू एंड कश्मीर में एक स्टेट PCS हुआ करता था व्हेन इट वाज अ स्टेट, एंड वो अभी भी होता है, उसका नाम है KAS, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उसका प्रीलिम्स हुआ, मेंस वाज सपोज्ड टू हैपन इन फरवरी, नहीं हुआ, अभी मार्च में होना था। A night before the means, the commission announced कि भाई इसको indefinitely means have been deferred। That's a very sad thing। कई लोग कहते हैं यूपीएससी कोई भी केस एंटरटेन नहीं करता है। Do you know that? ये छोटे छोटे केस एंटरटेन करने के चक्कर में यूपीपीसीएस बदनाम होता था, RAS बदनाम होता है कि द रिजल्ट आएगा ही नहीं, वो पेपर पे ही रात को स्टे लगवा दिया। तो पूर्वी कह रहे हैं RAS बिल्कुल होता है, तो स्टेट PCS इसमें काफी फंसते हैं। So I want to tell you what happened. So it was that the answer key given for prelims is wrong. Answer key given for prelims is wrong. यूपीएससी और स्मार्ट है, वो आंसर की देता ही नहीं। यूपीएससी बोला आखिर में दूंगा, पहला सब कुछ हो जाने दो, देन आई विल गिव यू आंसर की। इधर प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स का कट ऑफ हैज कम, दे हैव गिवन द आंसर की एंड क्वेश्चंस लाइक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस पोल्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस पोल्यूशन, or which of the following is because of climate change, okay, something has contribution to climate change, so it was ocean acidification and this thing, all four statements were correct, but the option was not there all the above। so objection हो सकता है कि नहीं? लोगों ने कहा देखो we can prove it, all of them contribute to pollution, or question was may contribute to pollution, so this is wrong। get that? So public ने objection उठा दिया। Now people who are about to write means कितने दुखी चल रहे होंगे कि नहीं कि अरे सब stay हो गया। Now the court has reserved the judgment and they will be telling what to do। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो the court will cancel the question, no problem। So they said no sir, the rule is if 10% of the questions are wrong, the whole exam will be repeated again। So I said okay, at least you have 10। He said no sir, 9 have already been proved wrong, this is the 10th one। And what is the 10th one? Look at the interesting thing, which of the following has the highest density of irrigation, which of the following states have highest density of irrigation, ठीक है, states हैं, and answer उसका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। So people think Jammu and Kashmir has the highest density, so they compared with the states। Now the objection is Jammu and Kashmir a state? Jammu and Kashmir is not a state। True or not? पब्लिक को पकड़ना तो कुछ भी कर सकता है। Do we understand? जम्मू एंड कश्मीर आपने पूछा which of the following state, but it is not a state, अब तो गलत है। True or not? अक्षय सिंह ये तो सही है सर, सर क्वेश्चन में इतना एरर होता है, कोई गलत क्वेश्चन सेट करता है, वो तो ठीक है। नाउ इट इज इन द कोर्ट, तो ऑब्जेक्शन तो हो गया कि नहीं हो गया? सो व्हाट इज हैपनिंग? मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरीथिंग। ट्रू और नॉट? हु विल डू दिस? जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं पूरा दोबारा से करवाओ, ये सब गलत। So who's going to clear this examination? UPSC Civil Services exam, the person who's mechanically connected with things or who can see the things in context। So when I ask you, भाई अपना क्वेश्चन ऐसे मैकेनिकली मत पूछो मुझसे, कोई भी सेंटेंस पूछ लिया आपने, उसको बताओ तो सही कहां पढ़ा, in that context it will carry a meaning। I hope you understand। तो अब समझिए कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज हॉल्ट हो गई है, एंड इट हैज हैपेंड इन मेनी स्टेट्स, अ नाइट बिफोर द मेंस, इवन इंटरव्यू प्रोसेस को स्टॉल कर दिया जाता है सिर्फ इसीलिए। एंड इवन यूपीएससी में भी हुआ था विद दिस कोविड थिंग, केसेस जो हुए थे, कोविड भी हुआ, ईडब्ल्यूएस पे हुआ, अब यूपीएससी कुछ एंटरटेन नहीं करता है। डू वी गेट दैट? सो व्हेनेवर यू आर डूइंग अ सब्जेक्ट, और ये जब एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं तो इसे मैकेनिकली मत पढ़े। अगर वहां पे फ्रंट आ गया इक्वेटर पर, तो अप्लाई योर माइंड व्हाट यू नो, जो आप जानते हैं, जो आपने पढ़ा है, एंड डज इट फिट, एंड गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट दैट दिस पर्सन इज इंटरप्रेटिंग, ये उनका ओपिनियन है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। सर बट बुक में कैसे माने? अरे बुक में तो मैं कह रहा हूं आई हैव ऑब्जेक्शन टू दिस डायग्राम, हाउ कैन यू से आपके किस सीए, मेरी तरफ से तो एमए। ट्रू और नॉट? ट्रू और नॉट? So that's what I'm saying. Start having that flexibility. This is my first advanced class. I am saying now that we have grown up, can we understand that or not? True?
So that is what we are talking about. Sir, what is their explanation behind saying continental Arctic? पूर्वी कह रही what is their explanation? A book has printed this. वो मुझे बताने आएगा. पूर्वी कह रही उनकी explanation क्या है सर, वो बताओ. वो क्या है? मैं कोर्ट में बैठा हूँ क्या? I am to just saying a diagram is like this. सर उनका क्या explanation है? जल्दी से बताइए सर. प्रियंका कह रही फ्रीज है, ये मान लो. फ्रीज तो कहीं पर भी है, बट वो कॉन्टिनेंटल तो नहीं ना. कॉन्टिनेंट वाज ऑन लैंड एंड डज इट बिहेव डिफरेंटली? और फ्रीज का मैं बता दूं प्रियंका, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इन समर्स नाउ आर्कटिक इज आइस फ्री. ये भी तो फैक्ट है. अब बताओ क्या करोगे? तो फालतू में फंसने का नहीं. यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 3 or 4 years ago, व्हाई साइक्लोन्स डोंट कम इन सदर्न अटलांटिक ओशन. ये क्वेश्चन पूछा है. नॉर्थ अटलांटिक में आता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, साउथ अटलांटिक में नहीं आता. व्हाई डजंट इट? अभी आया है. वी हैव डेटा. ब्राजील कोस्ट हैज बीन हिट बाय इट. सो गलत हो गया, अब क्या करूं? बट क्वेश्चन तो पूछ लिया उसने. क्या करूं? लाल सलाम, लाल झंडा गाड़ के आगे चल लेना. नहीं करूंगा मैं, अभी तेरे पे केस करता हूं. अगेन अंडरस्टैंड, एक क्वेश्चन है ना, मुझे पास होना है ना उसमें. सो व्हाट विल आई से? ओके भाई ठीक है, गलत है, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सदर्न दिस थिंग अटलांटिक ओशन इज लो. तो उसके रीजंस डू वी गेट दैट? इसलिए एब्सोल्यूट हो, ये शब्द समझिए और शब्द के पीछे की भावना भी समझिए. अ स्मार्ट स्टूडेंट हु इज एबल टू डू दैट, दैट इज देयर. अदरवाइज याद है कल किसी ने मुझसे क्या कहा? सर इंटरव्यू के क्वेश्चन के बेस्ट आंसर बता दो. वो रट के जाएगा वो. ओके आगे बढ़ते हैं. अब सीपी, एमपी, सीए, सीए, एवरीवन ओके? ये कैसे एयर मासेस है? कोल्ड है सर, ड्राई है सर. विंटर में दे आर फर्दर कोल्ड एंड फर्दर ड्राई. इज एवरीवन ओके विद दिस? अब किसी ने मुझसे पूछा सर ये वो लिखा कोल्ड एयर मासेस आर अनस्टेबल. भाई कहीं नहीं होते कोल्ड एयर मास अनस्टेबल. ये तो बताया था. कोल्ड सारी तो प्रॉपर्टी आपको बता दी थी. दे आर स्टेबल. अनस्टेबल कब हो सकते हैं? नॉट नेसेसरी स्टेबल. वो टेबल आप पढ़ते नहीं हो. कब होंगे नॉट नेसेसरी स्टेबल? जब वहां पे कुछ वार्मथ आ जाएगी. समर में लिखा था आपके लिए, बट वो हम पढ़ते नहीं. सर बुक में ये लिखा, बुक समझाओ. अरे जो समझाया वो तो अप्लाई करो. लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? बाय डिजाइन दे आर स्टेबल, बट इफ देयर इज कन्वेक्शन हैपनिंग, इफ देयर इज हीट, जैसे कनाडा में होगी, कनाडा में वाइल्ड फायर्स हुए, बहुत हीट होगी, तो उस टाइम तो दैट एयर मास विल बिकम अनस्टेबल और नॉट. सर ये एक लाइन लिखिए, बताओ कैसे होगा. तो खेल खेलना बंद करो. सब चीजें a + b = c, साइंस है, ज्योग्राफी. ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक कुछ है. तो प्लीज उसको अप्लाई करें. रही बात एमपी और एमपी मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मैरीटाइम कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल. यस, ये दोनों वार्मथ वाले, तो इनमें हीट है, धमाके की तो पॉसिबिलिटी. आउट ऑफ दीज व्हिच वन इज मोर अनस्टेबल? सीटी एंड एमटी. हु इज मोर अनस्टेबल? हु इज मोर डेंजरस? सर एमटी इज मोर डेंजरस. व्हाई? बिकॉज़ एमटी हैज गॉट मोर मॉइस्चर. ये जितने लोग सीटी लिख रहे हो, क्लास के बाद आपने पढ़ा नहीं, क्लास में भी बताया था एमटी बॉम्ब होता है. ठीक है, इससे साइक्लोन बनते हैं. सीटी के पास तो पानी नहीं. तो so many students, I want to ask you this question कि क्लास कराई गई, क्लास के बाद you never read anything about it, you did not revise from the class, and after a gap of 20 days you just happen to come across a sentence and now it's your right मुझे explain करो. अरे at least that is the time to refer to your notes. अच्छा एक बात बताएंगे. I am good at mathematics. I am very good at mathematics, and I understand differentiation and integration. I know a lot about it. I am very good at organic chemistry also. These were some of my favorite areas. School and thereafter. Get that? Today, I want to understand something about ketones, aldehydes. Yes, I want to understand something about the differential equations and some integral parts. But I don't remember any of the formulas. Today, after a gap of, say, it's been almost 25 years. Yes, true. So, मुझे क्या करना चाहिए? After 25 years, organic chemistry, I want to revise, do something. Review. So कैसे रिवाइज करो? I'll go to the old books, check the formula, dy dx of x square. करना पड़ेगा कि नहीं? डॉली बोल रहे being in touch, मुझे नहीं पता. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पढ़ना है, कीटोन, एल्डिहाइड, व्हाट इज द कन्वर्जन. सो I'll go and look at the equations. कैसा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? एक बात बताइए. When you don't know anything about atmosphere and you come across a line that this air mass is unstable and you don't understand, should you go back to your formulas? Who gave you the formula? The class lecture. Do you go to the formula? No, you don't. एक बात बताइए, how honest and how smart would it be कि आज मैं आपसे कहूँ, अच्छा tell me how can aldehyde be converted into ketone? Anyone who knows in the class? फिर कोई एक बता देगा. So will that help me? No, because the next one I don't know. So isn't it better to go back to the pool of the questions, pool of the formulas? So जब आप air mass पढ़ रहे हैं, you are reading from a book, would you keep your notes open or not? Would you check from there or not? तो अगर वो कह रहा है cold air mass unstable है, सर ये कैसे हो सकता है बताइए? क्यों बताऊं मैंने तो आपको बता दिया वहां पर प्रॉपर्टीज में बताया. कोल्ड एयर मास ड्यूरिंग समर सीजन नीड नॉट एसेंशियली बी स्टेबल एंड स्पेशली कॉन्टिनेंटल पोलर तो स्टेबल की तरफ रहता है. आर्कटिक अंटार्कटिक विल बी स्टेबल, बट मैरीटाइम पोलर हैज अ टेंडेंसी टू बिकम इनस्टेबल. लिखवाया मैंने लिखवाया नहीं, पर टेबल बना के लिखा है. फॉर्मूला है ना दैट शीट. इफ यू रिमेंबर आई मेड अ टेबल, सो दैट्स अ फॉर्मूला थिंग. क्यों नहीं करेंगे वो? अच्छा, व्हेन यू आर रीडिंग द बुक यू मे नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला. नो, yes, so give me a class 12 NCERT, and it has got 20 questions on differentiation. Can I do them?
Can I do them right now? No, I cannot do them. I need the formulas, yes or no? मुझे थोड़े बहुत differential याद भी है, that's okay, but I'll need that or not? Will I keep the formula book next to me while doing that? True or not? So what's wrong with you? I don't know whatever happened to education. And who said कि मेरे नोट से पास हो जाता? मेरे तो समझ में नहीं आता, वहां पर आपको आंसर बनाना होगा. नोट से क्या होगा यार? नोट से तो इन्फॉर्मेशन ही होगी, आप रिकॉल ही नहीं कर सकते. नंबर 1 रिकॉल नहीं कर सकते, सेकंड इज यू कांट लिंक. So how are we talking of advance? So आज भी एडवांस में जाने से पहले ओल्ड किया है. This diagram is there in certain books so that my student doesn't lose confidence. So that suddenly he goes to a coaching shop and he says, "तुम्हारे टीचर ने आपके लिए पढ़ाया, आपके ये मेरे वाले को पता है." अबे सुन, कोई भी हो सकता है यहाँ पे, एक कोई भी बहुत ठंडी पॉकेट बन सकते हैं, वो भी हो सकता है. यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड था कि नहीं था? फॉकलैंड आइलैंड में एक छोटी सी पॉकेट बन गई, क्या करेंगे? वहां फ्रंट बन गया, पॉसिबल हो ना? तो कुछ भी करके दुकान चलाने वाले दुकान चलाएंगे. तो आई जस्ट वांट माय स्टूडेंट टू बी फ्लेक्सिबल इनफ. हां ठीक है यार, ये है, वहां पर होगा. सो हाउ मेनी प्लेसेस ऑन द अर्थ हैव आई टोल्ड यू? नॉट मेनी. व्हाटएवर इज रेलेवेंट. कैन देयर बी प्लेसेस व्हिच समवन एल्स कैन टेल ये तो आपने सुनी नहीं, ये तो आपने सुनी नहीं? विल यू लूज कॉन्फिडेंस इन योर मदर टंग? हिंदी, इंग्लिश, तमिल, हैव यू यूज्ड ऑल द वर्ड्स इन योर वोकैबुलरी? जितने भी आपकी मदर टंग में नहीं है, बट स्टिल यू आर कॉन्फिडेंट, नो इट इज माय मदर टंग. द सेम थिंग. तो सब लोग नोट्स और नोट्स दे दो और नोट्स दे दो. इंटरव्यू के भी सर आंसर दे दो, मैं मैच करूंगा. अबे मैच करेगा, एक ये अच्छा लगता है मुझे. सर दिस इज माय आंसर, दिस इज योर आंसर. ठीक है, दिस इज माय आंसर एंड दिस इज योर आंसर. सर लेट अस कंपेयर. वो तो ठीक है, वो क्या मांग रहा है? सर मॉडल आंसर दे दो, फिर मैं अपने बनाऊंगा. कभी बनाएगा नहीं, वैसे क्या करेगा? मगर सो वन स्टूडेंट कॉल मी अप. ओके, she said, sir, my hobby is cooking. My hobby is cooking. So sir, tell me something about it. मैं क्यों बताऊं, मेरी थोड़ी हॉबी है. It is not my hobby. You tell me. So I asked, तो उसने बताया, sir, cooking is it helps me, like when I'm studying, no, to relax I use cooking. That's why sometimes I cook and all that. So I said, interview में क्या करोगे? बोले यही कहूंगी कि for relaxation, and if they ask me what all do you cook, I'll say I cook Indian. I have learned a little bit of Chinese also, and generally I help my mother. So there I picked up cooking. Good answer. When I'm bored or tired, it gives me the break that is needed, and I go for that. I learned cooking from my mother and something else. I said, good, very good. I said, cooking is not my hobby. Cooking is not my hobby. But if somebody asks me that if cooking was your hobby, so what does it do to you? I say, cooking thrills me. I am amazed. I am amazed by how a simple mixture of raw material in terms of fruits, vegetables, meats, eggs, when put on fire, can transform into a delicacy. I really feel that it is a work of art. And when I go for cooking, मेरे लिए वो बहुत creative space होता है. It gives me a creative satisfaction. And above all, sir, I'm very choosy about what I eat. So sometimes, like I feel, the freedom to cook what I want to eat would be with me. I really at times sympathize with people who can't cook because it gives me a lot of freedom. So that is what cooking is for me. Original? मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है. That's my way of seeing it. True or not? So this, sir, ये मुझे अच्छा लगा, मैं भी ये बोलूँगा. मत बोलना. But that's my way of cooking. Trust me. When I go to the kitchen, it's like a canvas for me. आज मैं ये करूँगा. You tell me, does your mother experiment or not? थोड़ा ये डाल देते हैं, थोड़ा वो डाल. Exactly at what time do I have to switch off the burner? कितनी heat रखनी है? For how long do I keep it simmering? All those things. It's a science way. It really inspires me. It is not just a break from the classes में थक गया था and something. I really want to go in the kitchen, all dressed up with all equipped, and मैं सच में उसे enjoy करता हूँ. The way I enjoy a cricket match, I enjoy cooking a dish. Who gave power to the answer? Who gave power to the answer? अब यही इंसान, the same person, is sent to a district. So how do you see the district work? Oh, I see district work as a huge opportunity to make a difference. ठीक है, सर ब्रेक हो जाता है, घर में बीवी से लड़ाई चल रही थी, सोचा बाहर जाता हूँ, चलो डीएम हूँ, देख लेता हूँ और क्या है. It is an escape for me. इनका आंसर था cooking is an escape for me, and I'm saying cooking is a thrill for me. It's an adventure for me. Now some of you might say, बकवास सर, मैं नहीं मानता है. आपका आंसर अलग होगा ना बच्चों. I am with you. I am with you. Absolutely okay. I am just saying if you go by the Vedic Ayurvedic understanding of food, food is nothing but a medicine. Yes, food is nothing but a medicine. So cooking is like therapy to me. I like to cook those things which will go into the body of the people, my family and myself, and which is going to contribute to my better health. So that's what cooking is for me. I'm generally not very fond of all those fried and other things, though I know fat is there, wasabi chahiye, whatever is needed, I use those fat related things also. Answer, कितने हो सकते हैं? Everyone tell me, कितने हो सकते हैं answers? Infinite. And that person wanted me to give him answers, interview के answers, ताकि वो रटेगा. सोचो यार, ट्रेनिंग पास नहीं करेगा और वो ये करने वाला. Is everyone okay? Did I give you the flexibility or not? Now is your test coming. सुनने में तो सब मजा आया होगा. हाँ, बहुत सही जा रहा है. अब ये एयर मास है. अब हम कहाँ पर आ गए? टॉपिक इज कॉल्ड एयर मास डायनामिज्म. एयर मास डायनामिज्म. Okay, so everyone please understand. This is the Indian coast. This is the Western Ghat.
ठीक है, एयर मास कमिंग एयर, क्या नाम है इस एयर मास का, जल्दी बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एयर मास कमिंग, क्विकली क्विकली, एमटी, बेटा छोटा टी मत लिखो, छोटा एम बड़ा टी, ये भी बताया था, सिंबल्स भी याद करो, एमटी मैरीटाइम ट्रॉपिकल, तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल इज कमिंग, तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल को मैं क्या मानूं, वार्म and moist, yes or no? Is everyone okay? Now this maritime tropical is forced to rise, yes or no? What will happen to its temperature? What will happen to its temperature? ये तो कूल हो जाएगा, yes or no? और moist का क्या होगा सर, इट्स moisture will condense, moisture will condense, तो रेन हो गया, तो ये क्या होने वाला है, relatively ड्राई हो जाएगा. What is this? Air mass modification. Is everyone okay? I'm not interested खुशी क्या होगा, I'm looking at air mass की प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया कि नहीं आ गया. Is everyone okay? ये कौन सा एयर मास है, what is this air mass? CT. CT. CT is what? Dry, warm, hot. The Bay of Bengal branch comes here. मानसून की ब्रांच आती है ना, वो सिटी को क्या कर देगी, सिटी तो यहीं पे खड़ा हुआ था ना, दिस एयर मास वाज स्टैंडिंग ओवर हियर, बट इसमें अब क्या आ गया, चलिए वार्म से क्या हुआ, चलिए तो कूल होने लगा, ट्रू है ना, और ये ड्राई था, अब ड्राई से क्या हो जाएगा, मॉइस्ट. ट्रू. सो इफ आई आस्क यू टेल मी इन सितंबर ये एयर मास की प्रॉपर्टी क्या है, तो आप सिटी तो नहीं बताओगे, आप बोलोगे सर सिटी है लेकिन सर थोड़ा मॉडिफाई हो गया, सिटी के हो गया ये सब, तो नीचे की सरफेस तो अभी भी वार्म है लैंड, बट ऊपर की एयर कूल हो गई कि नहीं, सिटी के हो गया, सिटी हैज टर्न्ड इनटू सिटी के. डू वी अंडरस्टैंड दैट? दैट इज व्हाई दोस 4 letter code में first 2 letter codes are based on the source region, the third letter code is based on the change which will happen. Is everyone okay with this? सिटी के हो जाएगा. Why K? Because K is cool air mass surrounding, क्योंकि नीचे तो अभी भी लैंड गर्म है, थोड़ा बारिश हुई है, बारिश की वजह से एयर हैज कूल्ड अप. ये सुनो, इज एवरीवन ओके विद, यहां तक समझ में आया? अच्छा, सिटी के तो ठीक है, स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, सिटी के एस लगाऊं या यू लगाऊं, यू. व्हाई यू, STKU? सर STKU बिकॉज यू वाज हीटेड फ्रॉम बिलो, ये देखो मेगा जबरदस्ती मॉइस्ट लिख रहा है, इसीलिए कहा मेगा, आपको समझ नहीं आया क्योंकि आपने नोट्स, आपने फार्मूला नहीं रखा डिफरेंशिएशन, हीटेड फ्रॉम बिलो लिखवा के दिया, चेक कर लो भी बुक में, चेक कर लो जल्दी से, के का क्या लिखा हुआ है, और के एंड यू, के इज कूलर देन सराउंडिंग, डब्ल्यू इज वार्मर देन सराउंडिंग, एंड यू वाज हीटेड फ्रॉम बिलो, एस वाज कूल फ्रॉम बिलो, चेक कर लो. क्या मैं तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहा, मेनी ऑफ यू वुड हैव फॉरगॉटन. एक बात बताइए, अगर मैं आपको ज्योमेट्री के सवाल दे रहा हूं अभी, मेंसुरेशन, पेरीमीटर एरिया एंड ऑल दोस थिंग्स, वुड यू वांट टू कीप द फार्मूला विद यू और नॉट? रिमेंबर ज्योमेट्रिक बॉक्स में एक फार्मूला शीट निकलती है जो आप एग्जाम में ले जाना चाहते हो. ट्रू. सर ये तो बुक में वो ज्योमेट्री बॉक्स में मिला था, मैं तो लाया नहीं, मैं तो चीटिंग नहीं कर रहा था, स्कूल तो हम भी गए यार. वी आल्सो फेस द सेम थ्रेट्स व्हिच यू फेस्ड, सर्वाइवल थ्रेट्स. सो प्लीज लुक एट योर फॉर्मूलाज. इज एवरीवन ओके? नाउ आई वांट दिस टू बी टेस्टेड. टेस्ट करूं एवरीवन? तो सब लोग एक फ्रेश शीट लेंगे, लेट मी टेस्ट दिस. माय टॉपिक इज एयर मास डायनामिज्म. एयर मास डायनामिज्म. सो आई एम गोइंग टू मेक नॉर्थ अमेरिका. क्विकली मेक अ नॉर्थ अमेरिका. Okay, tell me the name of air mass 1 and air mass 2. What is the name of air mass 1 and air mass 2? So one is CP, other is CT. Is everyone okay? What is the nature of CP? Broadly, the nature of CP: so cool and dry. Cold and dry. Often stable, towards stable, but instability possible. Is everyone okay? Let's talk about CT. CT is what? Sir, ये warm है, hot है, and dry. तो ये मॉइस्ट क्यों कर रही हो खुशी? ये फिर वही वाली बात है कि कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल मॉइस्ट भी होता है. फिर बता रहा हूँ, मैकेनिकल सोच रहे हो भाई, प्लीज यार कम से कम फॉर्मूला खोल के देख लो यार. इसे मॉइस्ट लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे होते हैं पता नहीं, फिर लगता है एडवांस क्या पढ़ा रहे हो यार इन लोगों को, स्पेशली क्लास लिया वो, कहीं तो होंगे भी नहीं कि संडे को अपने क्या फर्क पड़ता है ना. सो लेट मी नॉट लूज माई कॉन्फिडेंस, देयर आर स्टूडेंट्स हु आर जेन्युइन अबाउट दिस, कुछ ऐसे ही रहेंगे तो उनका कुछ हम खास चेंज कर नहीं सकते. अभी थोड़ी देर पहले बताया इसके पास मॉइस्चर नहीं होता है, ड्राई होता है, और ये भी बताया था इंडिया, सोच लो अभी तो बताया कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, फिर भी मॉइस्ट लिखे ना, रोक ही नहीं सकते भाई. अच्छा एक बात बताइए, दीज आर द प्लेसेस वेयर दे हैव इसको आपने थोड़ा टेंडेंसीज टुवर्ड्स अनस्टेबल, इनकी टेंडेंसीज टुवर्ड्स अनस्टेबल, उनकी टेंडेंसीज टुवर्ड्स स्टेबल. तो ये जो है ये तो आपने सोर्स रीजन के हिसाब से बताया, ये तो अपने सोर्स रीजन में ऐसे बने, इनके मम्मा पापा ऐसे थे, कैन आई से द बर्थ प्लेस वाज लाइक दिस, दैट इज व्हाई दे आर लाइक दिस. इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? क्लियर? अच्छा एक बात बताइए, विल दे ऑलवेज स्टे हियर? नो, दे विल मूव. तो वेयर कैन इट मूव? वेयर कैन इट मूव? तो सीपी कैन मूव, इधर को आ सकता है, ए भी जा सकता है, और वेस्टर्लीज इसको बी में भी ला सकती है. कैन इट मूव और नॉट? व्हाई वुड इट मूव? बिकॉज़ रिमेंबर प्रेशर बेल्ट शिफ्ट, एयर मासेस विल शिफ्ट अलोंग विद देम, अभी समझाया था. यस और नो?
एंड व्हाई एयर मास अल्टीमेटली मूव्स, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। सो अगर वहां पे लो प्रेशर है तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं जब ये यहां से 1 से बी आया तो ये क्या बन जाएगा, विल इट बी कॉल्ड सीपी अगेन या उसका नया नाम होगा, उसका नया नाम बताइए, व्हाट विल बी द न्यू नेम, यूज द कोडिंग। स्नेहा बोली एमपी, और सुनो एमपी तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर इतना आसान होता तो बात ही क्या थी, एमपी तो ऑलरेडी यहाँ पर है, सीपी आ रहा है उसका क्या होगा, अब दोगे यार। यू आर हियर, यू आर एन इंडियन एंड यू ट्रैवल टू चाइना, आई आस्क यू व्हाट आर यू, आई एम चाइनीज, नशे में हो क्या, यू आर एन इंडियन ट्रैवलिंग टू चाइना, तो सीपी रहेगा, सीपी के कोडिंग बताया क्या होने वाला जल्दी बताओ, सीपी, वेरी गुड, ऑल पीपल हु आर सेइंग सीपी के, बिल्कुल सही जा रहा है, सीपी के आपने डाला, क्यों के डाला, तो बहुत ठंडा है सर, बहुत ठंडा है और ओशंस पे चला गया, परफेक्ट, वेरी गुड। अच्छा स्टेबल है अनस्टेबल, ये बताओ, स्टेबल है अनस्टेबल है, जल्दी से बताओ, सीपी के यू है, वाई सीपी के यू, सर ओशंस आर वार्मर, ओशंस आर वार्मर, ओशंस आर वार्मर, तो इसलिए सर ऐसा हो गया। अच्छा अगर अनस्टेबल हो गया इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन इफ इट इज अनस्टेबल, so air will rise, there might be rain, there might be rain or not, very good। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, एयर राइजेस, राइज करके कॉन्डेंस होगा, पहले तो फॉग बन सकता है, ऊपर तक जाएगा तभी तो बारिश होगी, फॉग हो सकता है, रेन हो सकता है, क्लाउड कैसा होगा आपको क्या लगता है, थंडरी क्लाउड और स्ट्रेटस क्लाउड, थंडरी क्लाउड और स्ट्रेटस क्लाउड, रिमेंबर ठंडा एयर मास है, इट विल नॉट राइज टू मच, तो रेन होगी तो माइल्ड होगी, स्ट्रेटस क्लाउड होने के चांस यहाँ पर ज्यादा है, ये सुनो समझ में आ गया, बहुत अच्छा किया यार आप लोगों ने। और अगर ये ए में जाता तो क्या होता इसका नाम, जल्दी से बताइए, ए में जाता तो क्या होता इसका नाम, what would be the name if it had traveled to this, cp, cp तो रहेगा, so many people, everyone is writing w, भाई आपको लगता है this will be warmer than the underlying surface, आपको लगता है ठंडी हवा वहां से आ रही है, this will be a warm air mass, will this be cp w, अभी सोचो सही, ठंडी हवा आ रही है और नीचे की सरफेस क्या है, 30 डिग्रीज पे नीचे की सरफेस क्या है, नीचे की सरफेस तो गर्म है, तो when the cold air is traveling over the warm air, so what will be the air mass, क्या होगा, सीपीडब्ल्यू, जितने भी लोग सीपीडब्ल्यू कह रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीपी के होगा या नहीं होगा, सीपीडब्ल्यू होगा, डब्ल्यू तो हो ही नहीं सकता बच्चों, ये तो ठंडा एयर मास है, सीपी के होगा, स्टेबल और अनस्टेबल, ठंडी हवा नीचे जा रही है गर्म एरिया में, अनस्टेबल, ट्रू और नॉट, होगा या नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, इस एरिया को कोल्ड करेगा, कूल टेम्परेचर, लैंड का टेम्परेचर एकदम गिराएगा, गिराएगा कि नहीं गिराएगा, गिराएगा, टेम्परेचर गिरेगा तो वैसे भी यहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा था, कम था, सी के मुकाबले कम था सर, मॉइस्चर और कम चला जाएगा, क्लाउड होगा, क्लाउड हो सकता है, क्लाउड एंड रेनफॉल इज पॉसिबल, बट हाई और लो, कौन सी रेनफॉल हो रही है, रिमेंबर ऑल दिस इज फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल, ओरोग्राफिक नहीं हो रही है, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, फ्रंटल हो रही है, कुछ समझ में आया या मुश्किल था ये बताओ, आपको बताऊं ये क्या है, सीपी क्या है, यहाँ पर आकर ना आइसिंग भी क्रिएट कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है कि नहीं आइस, कनाडा में आपने सुना है ब्लिजर्ड, वो यही होता है, एंड आई डोंट नो वेदर यू नो इट और नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कनाडा, मेरे दिमाग में तो साइबेरिया है, हिमालयाज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड ड्राई साइबेरियन एयर। नाउ यूपीएससी आस्क्ड द क्वेश्चन, यूपीएससी आस्क्ड द क्वेश्चन, एग्जामिन द प्रॉपर्टीज ऑफ सीपी एयर मास, ये आपको टेबल से मिल जाएगा, फ्रॉम द टेबल इफ यू अटेंडेड माय क्लास ऑन संडे, प्रॉपर्टीज ऑफ सीपी एयर मास, सेकंड एंड इट्स इंपैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, इट्स इंपैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, इससे मिल जाएगा, जहां जाएंगे वो क्या करेंगे, will carry cold, will carry dryness, and because underlying surface will be warm, they will become unstable, convective instability can happen। अब एक बात बताओ मुझे, if any textbook, any book by Savinder Singh, D.S. Lal, Crutchfield, Indian author, foreign author writes that cold air mass causes instability, तो तुम कहोगे सचिन सर ये तो गलत है, cold and instability not there, did you not see that he's talking about the air mass dynamism, in that context what he's saying is correct, सर ये सेंटेंस लिखा था सर, कोल्ड एयर मास लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, सर हाउ इज इट पॉसिबल, बता दो, भाई पढ़ेगा आगे पढ़ेगा तभी तो, सर एक्सपेंशन से सर वो हो रहा है कैसे हो रहा है, आगे पढ़ना, कौन रोक रहा है, यू विल अंडरस्टैंड, डू वी गेट दैट और नॉट, भाई बाय नोइंग एडिशन मल्टीप्लिकेशन, बीइंग अ चैंपियन ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन, यू कांट डू डिफरेंशिएशन, नो, पहले तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, दैट इज हाउ इट विल हैपन, एंड यू नो व्हाट्स सरप्राइजिंग, टीचर्स आर डिक्टेटिंग दिस एंड आस्किंग स्टूडेंट टू मग अप एंड टेलिंग देम दैट ओनली आई नो, सुन बे,
My teachers were so good in the school. They told me how you can convert anything into a simple numerical like this and solve it and write it in your own words. Unfortunately, you never got good teachers. ये तुम्हारा बुरा रहा. करस्पॉन्डेंस से तुमने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, कॉलेज भी कभी नहीं देखा, घर बैठे बैठे ही सिर्फ गुंडे कर रहे थे, घर में ही चौधरी थे. अब बच्चों को समझा रहे हो और किसी को नहीं आता, मुझे ही आता. क्यों? भगवान शिव ने जो सप्तऋषि को आशीर्वाद दिया, ज्ञान दिया, तो क्या 7:30 वहां पे पहुंचा हुआ था? 7:30 ही लेकर तू छुप कर सुन रहा था क्या उधर? मैनी दिल्ली में ऑफलाइन में कितने सिकंदर घूम रहे हैं, यू डोंट नो. सिंपल सी चीज पढ़ाया, बोले सिर्फ मुझे ही पता है, गुप्त ज्ञान. और ऐसी चीजें ढूंढेगा जो सबसे ज्यादा इरेलेवेंट होगी, वाली ढूंढ के लगा इसके बिना आप पास नहीं हो सकते. वॉज इट सिंपल? मेरे पास एयर मास नंबर 3 है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एयर मास? क्विकली सर. एमपी. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एमपी? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एमपी? जनरली कूल, जनरली मॉइस्ट, मे बी अनस्टेबल इन समर्स. इज एवरीवन ओके? बहुत सिंपल चीज बताता हूं मैं, सीधी सीधी बात, इस पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है. ट्रू, इसके पास पानी भी है, इसके पास सब कुछ है. ओनली प्रॉब्लम इज इसके पास क्या नहीं है? हीट नहीं. ठीक है. अच्छा, वेयर कैन इट ट्रैवल? इट कैन ट्रैवल टू सी, इट कैन ट्रैवल टू डी. पॉसिबल हो सकता है. यहां पर क्या है? वार्म एयर. और ये क्या लेकर आएगा? कूल एयर. बीच में क्या बन जाएगा दोनों के बीच में? व्हाट विल बी क्रिएटेड? जल्दी बता दो. सो फ्रंट बी क्रिएटेड. तो आपसे पूछ रहा हूं, इस फ्रंट पे जो वेदर होगा उस एयर मास का नाम क्या होगा? और यहां पे भी पूछ रहा हूं नाम क्या होगा. तो जल्दी से बताइए मुझे सी का नाम. लेट मी सी हाउ मेनी यू आर एबल टू गेट सी करेक्ट. सी का नाम क्या होगा? व्हेन नंबर 3 मूव्स टू सी. मधुकर बोल रहा कोल्ड. बेटा नशे में मत रहे, अभी जो कराया था कम से कम ये तो समझ एक्सरसाइज क्या चल रही है. वो बोला सर कोल्ड. वो नहीं बोल सकते सर, ठंडा ही होगा. एमपी हो गया, एमपी तो रहेगा. एमपी के बाद कोल्ड कह रहे हो. एक बात बताओ यार, कंपेयर टू लैंड एंड वाटर विच वन इज वार्मर? दिमाग तो लगा नहीं रहे तुम लोग. सॉरी, बहुत टफ लग रहा है मुझे. बिल्कुल बिल्कुल लगेगा यार, टफ लगेगा. ऐसे कैसे हो गया? मतलब कुछ कर नहीं सकते तुम्हारा. थंब रूल स्कूल में पढ़ाते थे ना, कूलम्स लॉ ऑफ करंट, ऐसे बताते थे. क्लाइमेटोलॉजिकल थंब रूल इन पोलर रीजन्स. इन पोलर रीजन्स, ठीक है, हाई लैटिट्यूड्स. इन हाई लैटिट्यूड्स लैंड विल ऑलवेज बी कोल्डर than water irrespective of season. Even summers में भी, समर में भी दूसरे से लैंड ज्यादा हीट अप होता है बाय द एनर्जी बजट. मैथमेटिकली बता रहा हूँ ये, आपको कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ. रूल बना लो, लिख लो ये कहीं पर. पोलर रीजन में लैंड विल ऑलवेज बी कोल्डर देन वाटर. यू माइट से इन समर सर कैनेडा बिकेम वेरी हॉट सर. सर वो तो एटलीस्ट यू नो इट विल बी वार्मर देन द पैसिफिक ओशन. नेट एनर्जी बता रहा हूँ, नेट रूल. नेट रूल. दे माइट बी लोकल पॉकेट्स हो सकता है कि नहीं, एज अ रूल, थंब रूल है. सेकंड थंब रूल. और ट्रॉपिकल रीजन्स बता रहा हूँ. इन ट्रॉपिकल बेल्ट, ट्रॉपिकल रीजन्स, यहां उल्टा हो जाएगा ना. लैंड विल ऑलवेज बी वार्मर देन वाटर irrespective of season. सर दिस इज तो इम्पॉसिबल सर. सर दिल्ली, सर दिल्ली आप जाके देख लीजिए, विंटर में दिल्ली इज मच कोल्डर देन द अरेबियन सी. मान लिया दिल्ली इज द ओनली प्लेस इतना कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट है. इफ यू कंपेयर द वाटर एंड गुजरात कोस्ट. रूल बना दिया. किससे बना रहा हूँ फिर से, आपको अगर याद हो, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था हमने. हीट एक्सेस, हीट डेफिसिट, कैलकुलेशन से बता रहा हूँ. कैलकुलेशन एज अ रूल कि यहाँ पर लैंड ज्यादा गर्म होता है और यहाँ पर लैंड ज्यादा ठंडा होता है. डू वी गेट दैट? याद रहेगा? अब मुझे बताइए, विद दिस रूल व्हाट विल एमपी बी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड? वार्म और कूल? विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड विल इट बी वार्म और कूल? ये बताइए. ओशन की एयर है, लैंड से तो वार्म ही होगी, तो एमपी डब्ल्यू. स्टेबल और अनस्टेबल जल्दी बता दो. सबने दबा के यू लिखना शुरू कर दिया, बिकॉज वार्म मींस अनस्टेबल, वार्म मींस अनस्टेबल. एक और चीज बताता हूं यार, आपने तवा देखा है खाना बनाने के लिए? हैव यू सीन दैट तवा विद हैंडल आता है ना आजकल, इसमें चपाती बनाते हैं. एंड देयर इज फ्लेम. तवे के नीचे क्या है? गैस है, गैस का बर्नर है और बर्नर से फ्लेम आ रही. एवरीवन ओके? नाउ यू आर सिटिंग ऑन इट. स्टेबल और अनस्टेबल, इसको बोलते हैं हीटेड फ्रॉम बिलो. ठीक है. जिसको डाउट होता है कि वार्म इज
स्टेबल या अनस्टेबल, ये हीटेड फ्रॉम बिलो। तुम भागोगे, कहाँ भागोगे? यू विल लुक फॉर आइस, बर्फ की सिल्ली ढूंढोगे और उस पर जाकर बैठोगे। यस, दिस इज कूल्ड फ्रॉम बिलो। कहाँ आह निकलेगी, कहाँ वाह निकलेगी, यू कैन डिसाइड। डू वी गेट दैट? अब याद रहेगा हीटेड। स्टेबल अनस्टेबल में गलती कर रहा है यार। अब वार्म एयर है, कहां पर जा रही है? कूल सरफेस में। क्या होगी? जल्दी बताओ क्या होगा? एमपीडब्ल्यू एस। सब लोग यू कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या है। अबे नीचे बर्फ है यार, स्टेबल होगी कि नहीं? सब के सब यू 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 यू। ये तुम्हारे लिए था। इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ट्राई सिटिंग ऑन दिस। जो बैठा आज तक भागा है बस। एवरीवन ओके? इसका बैक अभी हो गया। तो यानी आपकी वार्म, कूल और मॉइस्ट एयर कहां पर आ रही है? ठंडी जगह पर आ रही है। ठंडी जगह पर आ रही है तो क्या होगा? व्हाट विल इट डू टू दैट प्लेस? पहले तो एक बात बताइए, यहाँ पे एडवेक्शन फॉग बनेगी कि नहीं? एडवेक्शन, वार्म एंड मॉइस्ट एयर कमिंग ओवर आइस, बर्फ की सिल्ली बनेगी या नहीं बनेगी? ठीक है। दूसरा मुझे एक बात बताओ, ऊपर वार्म है नीचे कोल्ड है, ऊपर वार्म नीचे कोल्ड, टेंपरेचर वर्टिकल वेरिएशन, व्हाट हैज हैपेंड टू टेंपरेचर? टेंपरेचर इन्वर्जन हो गया। होगा या नहीं होगा? नाउ इफ यू हैव अटेंडेड द क्लासेस यार, एकदम से समझ सकते हो कि बहुत क्लियरली यहाँ पर फॉग भी बनेगा, ये भी। और यहाँ पर है आइलैंड वैंकूवर। विंटर्स में ना यहाँ से फॉग हटती नहीं। इतने ट्रैफिक जैम्स, ऑफिस कैंसिल एंड एवरीथिंग। व्हाई? बिकॉज़ थ्रू आउट वेस्टर्लीज आर ब्लोइंग, वेस्टर्लीज आर मॉइस्ट, दे आर ब्रिंगिंग वाटर, वेयर एज विंटर कनाडा इज सब जीरो। जो भी आएगा वो सब बनेगा या नहीं बनेगा? यस, वार्म एयर है तो वार्मथ लेकर आ रही है, थोड़ा सा मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस लाएगी। विल इट ब्रिंग मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस और नॉट? ओह यस सर। नाउ ऐड टू इट वन इंटरेस्टिंग थिंग, ऐड टू इट वन इंटरेस्टिंग थिंग। अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज़ यू डन सम ओशनोग्राफी। यही वाली विंड, इफ आई टेक ब्रिटेन, ब्रिटेन में दिस विंड पासेस ओवर गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, वो और मॉइस्चर उठा लेती है। इट गेट्स मोर मॉइस्चर। यस और नो? विल इट ब्रिंग मोर वाटर टू यूरोप? एंड इमेजिन इफ देयर इज एन ओरोग्राफिक बैरियर। है क्या? ओ हाँ है तो सर। व्हाट इज द ओरोग्राफिक बैरियर? सर रॉकीज। विल इट कॉज रेन? हाँ सर, रेन भी आएगा। थ्रू आउट द ईयर रेन आने वाला है? हाँ सर। क्यों? क्योंकि फ्रंटल तो था ही था, साथ में आपने क्या ऐड कर दिया? ओरोग्राफिक। डबल रेन आएगा इधर, बट यूरोप में उतना नहीं आएगा बिकॉज़ यूरोप डज नॉट हैव माउंटेन्स। यूरोप में कौन सा आएगा? यूरोप में फ्रंटल ही होगा। डू वी गेट दैट? भाई एमपी मैरीटाइम पोलर व्हेन इट इज गोइंग टू स्ट्राइक, देखिए यहाँ पे सीपी तो हमेशा खड़ा हुआ है ना, सीपी और इसकी तो टक्कर होगी, यहाँ पे भी तो एमपी तो खड़ा ही हुआ है। तो जब ये टकराएंगे तो व्हाट विल दे फॉर्म? फ्रंट तो बनना ही बनना है। फ्रंट तो यहाँ भी बनेगा, फ्रंट तो यहाँ भी बनेगा। बट वी आर आस्किंग अब उस पे प्रेसिपिटेशन कैसे होगी, वो कौन डिसाइड करेगा? द थर्मोडायनामिक कोड एमपीडब्ल्यूएस। इज एवरीवन ओके? समझ में आया या नहीं आया? बट आई डोंट ट्रस्ट यू। एक और टेस्ट लूंगा। डी बताओ, डी का नाम क्या है? अगर ये आंसर सही आएगा तो मेरी आत्मा शांत हो जाएगी, वरना मैं तड़प तड़प के मर जाऊं। एमपी एमपी सोच के लगाना, के और डब्ल्यू। एमपी तो है ही प्रियांशु, आगे बढ़ो। एमपी एमपी जितने भी लोग के कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। पोलर एयर कमिंग टू वार्म लैंड्स, ऑब्वियसली इट विल बी के। ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल। यहाँ कुछ लोग एस कह रहे हैं, कुछ लोग यू कह रहे हैं। बेटा तवा याद रखना, तवा कहाँ पर है? तवा इज क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। देखो प्रियांशु अभी भी स्टेबल कह रहा है, सोनिया स्टेबल कह रहा है। अबे सुनो, गर्म जगह पर आ रहे हैं, दे आर कमिंग टू द वार्म एरियाज, वार्म लैंड, नीचे से हीटेड फ्रॉम बिलो। फिर कह रहा हूँ पढ़ लो प्लीज, वो टेबल खोल लो, लिखवाया था हीटेड फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पर क्या होगा? धमाका होगा। दिस इज फ्रंटल साइक्लोन, यहाँ बनते हैं। दिस इज हाउ फ्रंटल साइक्लोन्स आर क्रिएटेड व्हेन द मॉइस्ट कूल एयर कोलाइड्स विद, ये तो कुरुक्षेत्र हो रहा है, कांट यू सी? दिस इज कुरुक्षेत्र हैपनिंग। मॉइस्ट, उसके पास भी मॉइस्चर है, इधर भी मॉइस्चर है, दोनों के दोनों टकराने वाले। यस और नो? एंड इज अनस्टेबल आल्सो। धमाका होगा। विल देयर बी रेनफॉल और नॉट? दैट इज गोइंग टू हैपन। दिस इज फ्रंटल रेनफॉल। डू वी गेट दैट? एमपीकेयू। यहाँ पर क्या होगा? कोल्ड फ्रंट इज क्रिएटेड। पहले मैंने आपको बताया था ना, जो एयर इन्वेड करती है, ठंडी हवा ऊपर से आ रही है ना, कोल्ड फ्रंट विल बी क्रिएटेड। कूलिंग इफेक्ट लेकर आएगा अपने साथ बिकॉज इट इज के। के ब्रिंग्स व्हाट? कूलिंग इफेक्ट। बट इट इज अनस्टेबल बिकॉज हीटेड फ्रॉम बिलो, देयरफॉर क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेट साइक्लोन भी बनेगा। अच्छी बारिश होगी यहाँ पर। यहाँ स्टेटस नहीं होगा, यहाँ अच्छे से निम्बो स्टेटस, क्यूमुलस सब बनेगा, बट नॉट वेरी हैवी रेन। वो वेरी हैवी रेन इज रिजर्व फॉर दिस एयर मास। वेरी हैवी तो इसके लिए है एम पी, सॉरी एम। इज एवरीवन ओके विद दिस और नॉट? करके ये बताइए, यहां तक समझ आया या नहीं आया, और वाज इट टू टेक्निकल? ये समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाता है, बाकी ऑल इज इजी। दिस इज कॉल्ड एयर मास डायनामिज्म। आउट ऑफ द 3 एयर masses that we have talked of, 1, 2, 3 and 4, which air mass has the maximum moisture? 1, 2, 3, 4. Sir, number 4. Which air mass has heat and moisture? Number 4. Which air mass is going to be the biggest dhamaka? Empty. उसके पास everything. Now everyone, empty can travel इधर भी जा सकता है।
और इधर भी आ सकता है कि नहीं? सो इट कैन ट्रैवल टू ABCD तो हो गया, E एंड F। E का मुझे नाम बताइए। Already MP is standing. MP is in the north. MP is there. When they meet, Kurukshetra will happen. Is everyone okay? Front तो बनेगा। Which front? Who is going? ऊपर कौन जा रहा है? Warm air or cool air? So warm air. So what will that front be called? Warm front. Warm front बनेगा। जल्दी से बताइए इसका modification होकर नाम क्या हो जाएगा? Modified name. Modified name of E. पूरा कोड लिखो यार जल्दी से। MT। सर ये ट्रॉपिकल है सर, ये वार्म होता है, वार्म लेकर जाएगा। आगे क्या लगाऊं? S या U? याद कर लो नीचे से क्या हो रहा है? S। ठीक है, तो ये जाएगा तो इधर क्या बनाएगा? वार्म फ्रंट बनाएगा। E विल बी अबाउट वार्म फ्रंट। ये सारा का सारा चेंज हो जाएगा। जब ऊपर से वो आता है वो कूलिंग लेकर आता है, ये क्या करता है? हीटिंग ले जाएगा। यस, कूलिंग इफेक्ट। ये क्या करेगा? और मॉइस्चर लेकर जाएगा, ले जाएगा। मॉइस्चर एक्सचेंज विल हैपन। क्या मैं कह सकता हूं ग्लोबल हीट बजट एक्चुअली इन दोनों से एक्सचेंज हो रहा है? एवरीवन, एमटी गोइंग देयर और सीपी एमपी कमिंग डाउन, आर दे इन्वॉल्वड इन हीट एक्सचेंज ऑफ द ग्लोबल हीट बजट? हाँ ये भी है। अगर आपसे पूछ लिया व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दीज एयर मासेस देयर मूवमेंट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, डू यू हैव आंसर्स? सर ये अगर लिखवा देते ना सर तो मोक्ष मिल जाता। समझ तो सब आ रहा है। So that's your homework. Take them as separate sheet. हर sheet में लिखो ना, क्या दिक्कत है? If you are understanding it, can you write it or not? True. That is what I'm saying. अच्छा temperature inversion होगा MT में? Warm air going on, नीचे cold है। Temperature inversion हो सकता है? होगा? Warm moist air reaching cold, so that can also be there. Fog भी तो हो सकता है। या dew point पर आएगा तो dew point पर fog भी हो जाएगा। आपने सुना यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर लेब्राडोर में न्यूफाउंडलैंड में fog बनती है। Have you seen that or not? Fog भी बनेगा और temperate cyclone भी बनाएगा। Is everyone okay? Name. What will be the name? MT? जल्दी बताओ। बहुत से लोग इसको MTW कर रहे हैं। MTW जाऊं या MTK जाऊं? Think about it. Take a call. MTK or MTW? A thumb rule was given to you. MTK. This is hot. This is very moist. Yes. Something which is hot and very moist, उसको स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल? अगर स्टेबल है तब तक तो ठीक है। अगर ये अनस्टेबल हो गया तो ये बॉम्ब कर देगा कि नहीं? इसके पास सब मसाला है, टेम्परेचर भी है, मॉइस्चर भी है, तो जैसे जाता है ये घूमना शुरू करता है। What is this? This is the recipe for tropical cyclone. यहाँ फ्रंट नहीं बनता। This is not frontal. This is non-frontal. This is high degree of convectional activity. इतनी गर्म है कि कन्वेक्शन से सब उठ रहा है। सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। नॉट हेवी रेनफॉल, वेरी हेवी रेनफॉल, वेरी स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स यहाँ पर क्रिएट होंगी। And this is where we have cumulonimbus clouds, we have thunderstorm, we have lightning, सब हो रहा है। इसलिए मुझे लगा कि ये MTE तक तो ठीक है, F का मतलब तो भारी चीज आ रही है। क्या आप जानते हैं यहाँ पर भी साइक्लोन होता है? कैरेबियंस आर नोन फॉर साइक्लोन्स, इसलिए इंडिया बना दिया। एवरीवन आर यू ओके विद दैट? विंटर्स में MT यहाँ पर आ जाता है तो चेन्नई को मारेगा, मारता है चेन्नई को। दिस इज क्लाइमेटोलॉजी यार। व्हाट डज द मीटरोलॉजिस्ट डू? वो एयर मास देखता रहता है, वो देखता है कहाँ मूव कर रहा है। आपने देखा वहां पर लिखा था वन लो इज मूविंग टुवर्ड्स इंडिया एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दिस विल एंटर जम्मू एंड कश्मीर, दिस ए सिवियर लो इज बीइंग क्रिएटेड ओवर केरला, नॉट टू वरी, ये जाएगा इधर बट इट माइट टर्न, तो इधर मार सकता है बॉम्बे को, गुजरात को। ऐसा देखा, रिकर्व से मारता है। यहाँ पे तो डायरेक्ट मारता है। A person cannot understand cyclone until unless he or she understands कि एयर मास बन तो गए, ये तो बहुत इजी है, दिस इज इजी, ये तो अपनी जगह पर स्टैंडिंग है। When it moves, then it does drama. True or not? So you were in your family, your father has reared you up, your mother has reared you up, your family is a very respectable, well-to-do family. तो आप भी वही हैं, you are also respectable, well-to-do. But when you come out of that family, when you leave that house, yes or no? And then you are caught in drug peddling, yes, human trafficking, तब तुमने मॉडिफिकेशन कर दिया। ट्रू और नॉट? क्या बात कर रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूं? ओके, यू टर्न इनटू सुंदर पिचाई, यू बिकम द हेड ऑफ फेसबुक, देन आल्सो यू मेड मॉडिफिकेशन। तो स्टैंडिंग एयर मास अपने मम्मा पापा का, सोर्स रीजन का, मूविंग एयर मास दुनिया का। इट विल चेंज द दुनिया आल्सो। सो मेरी क्लास में बैठे हो सचिन सर का, क्लास के बाहर निकल के एग्जाम में परफॉर्म करोगे, दैट इज योर डूइंग, दैट विल बी अ ट्रू टेस्ट ऑफ योर कैरेक्टर। ट्रू और नॉट?
इज एवरीवन ओके विद एयर मास मॉडिफिकेशन? कर लेंगे? एंड आई एम श्योर यू वो पेशेंट सुन रहे थे, समझ रहे थे, काफी गलत भी कर रहे थे. विद एवरी मिस्टेक यू वुड हैव लर्नड आल्सो. थंब रूल याद रहेगा. थंब रूल याद नहीं कर पा रहे तो ये तवा याद रख लेना कि तुम इस पर बैठे हो, ये तुम्हारे हाथ हैं, सब गर्म हो चुका है, सब जल चुका है. एयर मास टाइम. सर लिखना क्या है? लिख के दे रहे हैं. हाँ, एयर मास टाइम, एयर मास मूव्स आउट, इट कैरीज द टेंपरेचर, इट गेट्स मॉडिफाइड, एडिशन और लॉस ऑफ मॉइस्चर हो सकता है, वर्टिकल मूवमेंट हो सकता है. रिमेंबर स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी. द अमाउंट ऑफ मॉडिफिकेशन कभी कभी थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन कुछ जगह पर बॉम्ब हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन एयर मास. अब समझ में आ गया? अगर ये पहले ही सेंटेंस पढ़ा दूं, इफ आई गिव यू दिस सेंटेंस, देन यू से एवरी बुक प्लीज एक्सप्लेन सर, प्लीज एक्सप्लेन द सेंटेंस, प्लीज एक्सप्लेन द सेंटेंस. पहले क्या किया? कॉन्सेप्ट समझ लिया. नाउ यू रीड द बुक, सब समझ में आएगा? आएगा नहीं आएगा? सो दैट इज व्हाई एडवांस क्लाइमेटोलॉजी इज नॉट गिवन. ऐसे बच्चों को पहले समझाया जाता है. थर्मोडायनामिक प्रोसेस. थर्मो मींस हीट एंड मूवमेंट. कैन आई से? सो हीट से जो मूवमेंट होता है वो आपने देखा कन्वेक्शन हो जाता है. मूवमेंट क्या, एडवेक्शन भी हो रहा है. जैसे नो दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, दे आर फोर्सिंग ईच अदर टू राइज. Thermodynamic processes include heating from below, and heating from below decreases the stability. Do you understand? Heating from below क्या होता है? Unstable होता है. सर ये क्यों है? Why this is, sir I could never understand why. चित्र देखें. और जिनको चित्र से समझ नहीं आ रहा, some of you who don't know, मम्मा को चित्र दिखाना, पूछना इसका प्रैक्टिकल कैसे करूं, फिर मम्मा बताएंगे कि बेटा ध्यान से इस वाले तवे पर बैठ जाओ. गेट इट? मम्मा भी हंसेंगे, यार क्या बच्चा है यार, मतलब ये नहीं समझ पाया. Heated from below. There are many पर्सनल पीएम भेजेगा, सर हीटेड फ्रॉम बिलो समझ नहीं आया. ठीक है. अदर इंक्लूड इवेपोरेशन. कुछ जगह पर इवेपोरेशन हो जाएगा एयर मास फ्रॉम बिलो, क्योंकि नीचे से हीटेड है ना, तो उसका इवेपोरेशन भी होने लगेगा. मोमेंट इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा? कन्वेक्शन. वो भी इंस्टेबिलिटी का पार्ट है कि नहीं है? यस. लेयर बाय प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द ओवरलाइंग मॉइस्ट एयर, ऊपर क्लाउड बनेगा. अब ये सारे वर्ड सुनने में बहुत टेक्निकल, बट इधर व्हेन वी डिड इट ये तो इजी था. हाँ ठीक है, एयर आएगी, ऐसे क्लाउड बनेगा, साइक्लोन, बिकॉज़ व्हाट वी हैव डन इन आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वी हैव अंडरस्टूड हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म, हाउ प्रेसिपिटेशन में बर्जरॉन प्रोसेस एंड ऑल दोस थिंग्स, तो सब हमने बात कर लिया. द एक्सटेंट कितना मॉडिफाई होगा, हाउ मच विल इट बी मॉडिफाइड. So is everyone who's attending my class equally modified? Some of you are following my instructions, some of you are doing the homework, some of you are revising everything, some of you are writing answers. उनका modification अलग होगा. Some of you are sitting like चौधरी, ये भी मैं तो वैसे उन सर से भी पढ़ चुका हूँ, इनका तो मैं वेट कर रहा हूँ किस दिन ये आंसर चेक करेगा, मैं तो इसलिए आया हूँ. Your modification would be different. True or not? So that's what we are saying. Every air mass will not modify similarly. It will depend on the initial characteristic. अगर दो एयर मास में ज्यादा डिफरेंस ही नहीं है, MP comes to CP, ठीक है, और समर में, समर ऑफ कनाडा बहुत ज्यादा फर्क नहीं, ये भी हॉट हो गया है, ये सुनो हीटिंग, तो फिर ज्यादा चेंज नहीं होगा. ये सुनो नेचर ऑफ अंडरलाइंग सरफेस, इधर नीचे यहां पर हमने बोला रॉकीज आ गया, विल इट कॉज मॉडिफिकेशन. पाथ फॉलोड बाय द एयर मास, टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो कितने टाइम से, एक बात बताइए, ये बहुत सिंपल सा सर, ये वाला समझ नहीं आया टाइम टेकन. एक बात बताओ ना, आई हैव टू रीच पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये एयर आ रही है, कहां पर ज्यादा पानी आएगा? सर बी पर आएगा. क्यों? सर इधर ओरोग्राफिक है ना सर, बहुत सारी रेंज. अच्छा ठीक है, व्हाट अबाउट सी? सर सी पर आएगा लेकिन कम है सर, वो तो रेन शैडो है. और ए पर सर आएगा तो, बट इतने टाइम से ये एयर मास लैंड पे घुसा हुआ है, इट्स मॉइस्चर सप्लाई इज ऑलरेडी लॉस्ट. सो कैन यू अंडरस्टैंड टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रैवल, उस सब पे डिपेंड करेगा. डू यू अंडरस्टैंड? नाउ इफ एनीवन ओपन्स अ बुक एंड रीड्स दिस पैराग्राफ, हु डजंट नो व्हाट एयर मासेस आर, व्हाट देयर मूवमेंट इज, उसे कोई सेंटेंस समझ में नहीं आएगा. दैट पर्सन वुड वांट द टीचर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सेंटेंस, बट टुडे कैन यू सी इनिशियली व्हाट काइंड ऑफ एन एयर मास इज इट? रिमेंबर, अभी हमने देखा MT इज अ बॉम्ब एयर मास, CP है बट CP अलग एयर मास है. तो नेचर ऑफ द एयर मास विल आल्सो मैटर, अंडरलाइंग सरफेस वेयर इट पासेस दैट विल मैटर. ठीक है. मैकेनिकल डायनामिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय साइक्लोन्स. तो एक बार ऊपर नीचे भी जाता है. यस, राइजिंग कॉजेस कूलिंग. मैकेनिकल और डायनामिक आर यूजुअली इंडिपेंडेंट. सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन कैन रिजल्ट व्हेन द एयर मास इज ड्रॉन इनटू अ लो. सो जब वो लो प्रेशर में जाएगा, भागेगा, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कन्वर्ज हो जाएगा. कन्वर्सली सब्सिडेंस एसोसिएटेड विद एंटीसाइक्लोन. सो इफ इट्स अ लो प्रेशर, एयर मासेस विल टेंड टू कन्वर्ज, तो यहां पे फ्रंट बनेगा. Yes or no? When two air masses will collide, what will they form? Front. So that is called frontogenesis. So at low pressure what happens? Birth of front happens. But at high pressure the air has a tendency to go away. तो यहाँ जो front था वो क्या होगा? Loss होगा, उसको बोलते हैं frontolysis. Do we understand? So beginning of the class causes convergence of all students to the classroom. Yes. End of the class causes all students to leave the classroom. Yes or no? So front formation is air masses coming closer, that is frontogenesis. What will aid? A low pressure will aid frontogenesis. Right? Frontolysis, dissolution, air masses दूर जा रहे हैं. What will aid? Anticyclone will help in frontolysis. अब देखो टेक्निकल वोकैबुलरी होगी, बट आइडिया इज वेरी वेरी सिंपल. आंसर में वो यूज करना पड़ेगा. ठीक है. सिंकिंग एयर, जहां पे सिंक हो रहा होता है, जैसे माउंटेन पे चढ़ गया वेस्टर्न घाट, नाउ इट इज सिंकिंग.
सो मूवमेंट डाउन फ्रॉम द अबव कोल्डर एयर मास, डिसेंट ऑफ हाई एलिवेशन, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, हीटिंग हो जाएगा। लिफ्टिंग कब होता है, जब वेस्टर्न घाट इज कम इन द वे, सो over colder air mass, कभी frontal भी हो सकता है, you have a cold air in front of you, then you are forced to lift up, or you can also have a elevation of land like western ghat, yes no, so that is going to happen. Advection क्या होता है, advection तो just horizontal movement, new properties aloft above the shearing action of wind। अब ये shearing action of wind नहीं समझ आया, छोड़ दो, technically shearing action of wind, shearing is the vertical ones, that is what we are talking about। सर ये पढ़ा दीजिए, यही टेक्निकल है, आधे लोग शेयरिंग ही पढ़ाएंगे फिर इस पूरे के पूरे पेज में, कुछ टीचर सिर्फ शेयरिंग पढ़ाएंगे। शेयरिंग का सिंपल तरीका बताता हूँ, शेयरिंग सिंपली मींस फ्रिक्शन इन द राइज एंड सिंकिंग ऑफ एयर, दैट इज शेयरिंग एक्शन, ठीक है। शेयरिंग सिंपली मींस फ्रिक्शन टू द राइज एंड फॉल। सिमिलर ऑल्टरेशंस इंस्टेबिलिटी कैन अकर, तो ये इतनी सारी जो बातें बता रहा हूँ, ऑल ऑफ देम आर सेइंग व्हाट, एयर मास व्हेन इट मूव्स आउट ऑफ द सोर्स रीजन विल मॉडिफाई, एंड इंस्टेड ऑफ ऑल दीस थिंग्स टेल मी, डज द कोडिंग टेल यू अ लॉट, इज कोडिंग अ गुड थिंग और नॉट? तो कोडिंग से सब समझ में आता है, एंड द गुड थिंग इज यू आल्सो नो हाउ टू क्रिएट द कोड, यू डोंट हैव टू मग इट अप, you don't have to mug it up, and once you know how the cold is there, so cold ज़्यादा तो टेम्परेचर को कैसे चेंज करेगा, ह्यूमिडिटी को कैसे चेंज करेगा, will clouds form or not, will temperature inversion happen or not, ये 5-6 बिंदु हो गए, if you have 5-6 points your answer is good, true or not, डायग्राम भी बना सकते हो। now तो I have shown you where in the world, I have to give you practical examples of the world, भाई मैंने इंडिया का साइक्लोन बना दिया, उधर मैंने कनाडा बना दिया, ये साइबेरिया भी हो सकता है, possible or not, this is what we are talking about, is everyone okay? हाँ, so air mass के types, tabular explanation was done on Sunday, अगर संडे को आपने ना पढ़ने की कसम खाई थी तो उसको देख लेना। आज क्या किया, मूवमेंट ओवर हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट नहीं किया, हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट को हटा के मैंने कौन सा कॉन्टिनेंट लिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ एशिया, ठीक है। तो साउथ एशिया तो कॉन्टिनेंट नहीं, हाँ ठीक है मुझे पता है, भावनाओं को समझो। एसोसिएटेड वेदर चेंज समझ में आ गया, टेम्परेचर को क्या करेगा, व्हाट विल इट डू टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फॉग, स्टेबिलिटी, क्लाउड टाइप, रेन अमाउंट, सर ये तो बताया नहीं, रेन अमाउंट यू नेवर टोल्ड अस, सर दिस इज चीटिंग। अरे स्ट्रेटस इज लेस रेन, पोलर एयर मासेस हैव लेस वाटर सो लेस रेन, ट्रॉपिकल एयर मासेस मोर रेन, क्यूमुलोनिम्बस मोर रेन, अभी तो बताया। अच्छा वो था, वही वही। अगर आपसे पूछ लिया हाउ डज सीपी इंपैक्ट द वर्ल्ड्स क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फॉग, स्टेबिलिटी, इतने 5 पैरामीटर पे आंसर लिखो, क्या टेंशन, और साथ में क्या लिख देंगे आखिर में, हीट एक्सचेंज एंड बजट। इंटेलिजेंट ways of looking at things in simple ways, in more meaningful ways, that has been there, material has been shared with you। जो लोग फॉग के बारे में नहीं जानते हैं, तो 5 तरह की फॉग भी थी, और आप में से किसी ने भी मुझे आज तक सब्सिडेंस फॉग के बारे में कुछ पूछा भी नहीं है, बताया भी नहीं। सर फॉग तो नहीं थी 5 तरह की, आपने तो इन्वर्जन बताया था, हाँ इन्वर्जन से जुड़ा हुआ फॉग भी, यस आई टोल्ड यू 3 टाइप्स ऑफ फॉग तो सिखाई थी आपको, रेडिएशन फॉग, एडवेक्शन फॉग, यस एंड और कौन सी थी, वैली फॉग, रिमेंबर दिस। सो इफ यू डोंट रिमेंबर, सिंपल थिंग, रिवाइज, पिछले वाले वीडियोस को दोबारा देख लो ना। तो यू टेल मी, आई हैव बीन टीचिंग ऑल दिस फॉर सो मेनी इयर्स, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो जाएंगे, मुझे तो याद है ना, मेरे लिए तो इजी हो जाएगा, आपके लिए तो न्यू है, सो प्लीज डू दैट, टेक योर टाइम, डोंट बी इम्पेशेंट, ऑल लर्निंग हैपेंस स्लोली थ्रू रिपीटेशन। Imagine you have to do some mathematics, CSAT के लिए आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज करना है, मुझे भी करना अगर वो, आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, बट विल इट टेक प्रैक्टिस और नॉट, इनिशियली आई विल मेक एरर्स और नॉट, आई विल बी स्टक विद सम क्वेश्चंस, होगा या नहीं होगा, यू विल आल्सो बी, सो यू आर स्टक विद सम, ट्रीट दिस एज द सेम लर्निंग। अनफॉर्चुनेटली सम पीपल स्टार्ट सेइंग सिविल सर्विसेज इज समथिंग डिफरेंट, और ये नए रूल्स होते हैं, कोई रूल नहीं है, एजुकेशन इज वन थिंग यू स्पेंड योर लाइफ विद, यू आर गुड एट इट, योर रूल्स अप्लाई। कौन सा एयर मास है, कैसा है, कोल्ड है, ड्राई, कितना कोल्ड, लो सबका बाप आ गया -46, तो ड्राई भी आप समझ सकते हैं, वेरी ड्राई, ठीक है। इसको क्या बोलना, सीपी, वो कह रहा है इसके ऊपर भी एक है CA, इमेजिन, तो CA भी कह रहा है, और कह रहा है इसके बीच में फ्रंट है, कोई बात नहीं, वो कह रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक दिस इज कोल्ड इनफ फॉर मी। जब ये आएगा तो रिमेंबर यू सेड दिस इज CPK, के हो जाएगा ना, सो व्हाट डज इट डू, यहाँ सबका टेम्परेचर गिराता जाता है, एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, ये 30 डिग्रीज है, दिस इज 30 डिग्री लैटिट्यूड, दिस इज ट्रॉपिकल, ऐसा ना, ट्रॉपिकल में उसने क्या कर दिया, -4 डिग्री सेल्सियस लेकर आया, ऑलमोस्ट इक्वेटर पे देख लो, ये तो यहाँ पर ले आया 10 डिग्री पर ले आया, यहाँ भी टेम्परेचर 10 डिग्री, वेयर इज द नॉर्मल टेम्परेचर हियर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस, सो एक्सपेक्टेड इज 25 एवरीवन, बट एक्चुअली रिपोर्टेड इज 10 डिग्री सेल्सियस, व्हाट डू वी कॉल सच अ सिचुएशन, जल्दी से बता दो, एक्सपेक्टेड इज 25, सर दिस इज एनोमली, व्हिच एनोमली, सर नेगेटिव एनोमली, वेरी गुड, सो द आइसोथर्म शुड हैव बीन लाइक दिस, बट व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज़ ऑफ द कोल्ड करंट ऑल आइसोथर्म्स हैव बीन बेंट लाइक दिस, तो ये 25 वाला भी बेंड हो जाएगा कि नहीं, सेम थिंग, फर्स्ट क्लास में किया था, आज यहाँ पर देख लिया, एक्चुअली हैपनिंग, और इसी को कहा जाता है लोकल विंड, blizzard in Canada, Buran in Siberia, ठीक है, कहाँ पढ़ा, जिसलियांग में पढ़ा था, रिमाइंड यू समथिंग, हाँ सर जिसलियांग में, वो टेम्परेचर को नीचे ला सकता है। अच्छा, विल इट कॉज रेन, सर लो रेन होगा, व्हाई लो रेन, व्हाई लो रेन, सर पहले तो रेन होगा ही नहीं, मोस्टली स्नोफॉल होगा सर, बिकॉज इट्स सो कोल्ड नो सर, बट स्नोफॉल अमाउंट विल बी लेस, व्हाई लेस, बिकॉज सर इट इज ड्राई, नो इट डजंट हैव मच मॉइस्चर,
Oh, but when it passes over the Great Lakes of America, can it pick up some moisture? Yes, sir. So can I say here the snowfall will be a little more? Why? Because of a local moisture source. Everyone, can you appreciate the exception also? पहले rule समझो, उसके बाद exception भी समझो. This is it. So everyone, do you know Gujarat is on this line? Kutch lies on this. Do you know India's Gujarat is on not 30, sorry. Gujarat is on 23.5. Yes, Tropic of Cancer passes through it. So आप समझ सकते गुजरात तक टेम्परेचर जीरो ले आता अगर हिमालय नहीं होता. If Himalayas was not there, then the Siberian air mass could have brought the temperature of Gujarat to zero. I am going by latitudes. Possible था ये नहीं. ओ सचिन सर ने कहा गुजरात में जीरो था. I'm saying possible था. Possible होगा नहीं होगा डिपेंड करता है. Big role played by Himalayas. Is everyone okay? They contain the tropical heat south of them and restrict the polar cold north of them. And not alone Himalayas. सिर्फ हिमालय ही नहीं है. कुनलुन, तीन शान, ये पूरा का पूरा एरिया माउंटेनियस एरिया है. This is India, this is China, this is Central Asia. Do we get that? So this entire region, और यहाँ पर है साइबेरिया का वर्कवेयर. So the cold air will start from here and it has to come. But वो आ नहीं पा रही. Who's blocking it? All these ranges will block it. And Himalaya तो triple check, triple filter layer. Everyone okay with this? Air mass is understood. I did not teach these in basic classes. Why? Because अब थोड़ा मुश्किल है. But I'm sure if you did that, you got time to digest also. अब हमारे हैं front में 90 degrees, 60 degrees, north. Which air mass? CP sir. CA भी चलेगा. CPCA. ये और भी ठंडा हो गया. वैसे CP रख लेते. यहाँ पर कौन सा है? MT. MT is the bomb one, no? MT starts moving. CP, MT starts moving. MT पगला है. Yes, no? CP वहीं पर है, थोड़ा थोड़ा अपनी जगह पर मेंटेन किए हुए. तो cold air mass, no? Cold is a heavy air mass and generally not very mobile. But in any case, in our example, who is the moving air mass? MT is the moving air mass. MT आया, उसने कहा हटो. CP said, what? MT says move. CP said, I am cold air mass, I don't move. MT said, बताऊं क्या? He enters. Yes. Remember, air masses don't mix easily. Enter, moment it enters, ये ले. इसका ब्रह्मास्त्र फेल हो गया. क्या बन गया? Cloud. Sir, cloud कैसे बनेगा? Cloud कैसे बनेगा? अरे warm air entering cold air, dew point आ गया. Okay. सुनो, enter नहीं हो सकते. चलो कोई बात नहीं, ऊपर चलो. यहाँ से ट्राई करते हैं. ये ले, फिर से cloud. Remember that Ramayana wala, they will fire that arrow and then tick 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 tick, one of them will vanish. So this warm air is trying to, and the cold air says, try me, कर ले, तू भी कर ले. Yes or no? Sometimes it happens when your car is going and the dog starts barking. पगला गया, वो रुक ही नहीं रहा है. दौड़ ले जो दौड़ना है. If the dog is too active, if it tries to come in the tire of the car, what will happen to the dog? Chutney. So dog is very smart. वो साथ में ही दौड़ता है. दौड़ते दौड़ते फिर क्या होगा? थक जाएगा. Remember, dew point comes. यहाँ cloud हो जाएगा. So there is an invisible boundary which is not letting the two air masses meet, and that boundary is called a front. Is everyone okay? Get that? So think of thick chocolate. Thick chocolate flow on a table. Chocolate is flowing like this. Yes, and you splash milk on it. What will happen? Milk आएगा, milk will get splashed like this. Will it enter the chocolate? No. Chocolate will be able to maintain its boundary or not. थोड़ा सा chocolate को गीला कर देगा. Yes or no? But it will not enter the chocolate. So imagine this warm air which is coming. It can like try to attack it, but the cold air maintains it. And in the process, warm air का क्या हो जाता है? Wherever it is cooled below dew point, उसमें clouds बन जाएंगे. Cloud की वजह से क्या होगा? इस पूरे एरिया में rain या precipitation होगा. Is everyone okay? True. So this is called front. देखिए, fronts are boundary surfaces that separate air masses of different densities. Can I say different physical properties? One of which is usually warmer and more moist. That is why I say, when somebody says that, this thing, the northern hemisphere easterlies, when they meet the southern hemisphere easterlies, they form a front. Contrast in everyone tell me simple. Please pay attention. If this was not thick chocolate, everyone please pay attention. If this was not thick chocolate, if this was a flow of milk and this was water,
when they come in contact, will they form a film, will they form a boundary? दोनों mix हो जाएगा यार. So आप में contrast ही नहीं है. The more contrast you have, the more will be there. अच्छा एक और चीज करते contrast लेके तो मिल्क हटाते हैं. यहाँ पर है molten wax and water लिख रहा है, पानी और molten wax. Immediately water will climb on it, बल्कि wax को solidify कर देगा कि नहीं कर देगा? It will not mix. Wax will get solidified, some water will get evaporated also. एकदम सही कह रहे हो, water भैया एकदम ऊपर चल, evaporation भी हो जाएगा. So this is what we are talking about. So when they write in the book, there is a front between that also. कभी की कल्पना रोक तो सकते नहीं यार. Yes or no? So it's like मुझे I want to get married and क्या है? I'll marry only दीपिका पादुकोण. ये हो चुकी है उसकी, तेरा कोई चांस नहीं है. Get that? नहीं एक दिन कभी तो रणवीर छोड़ेगी वो, छोड़ के भी तेरे पास नहीं आ गई. Don't think too much. Yes? तो भी क्या है? दोनों एयर मास, नॉर्थ ईस्टर्ली एंड साउथ ईस्टर्ली, उनके बीच में फ्रंट बनेगा ही बनेगा. अभी नहीं बन रहा, कोई नहीं बन रहा है. बट अब लिख दिया तो मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ. हाइपोथेटिकली तो मान सकते कि नहीं. ये देखो कुछ लोगों ने तो उम्मीद भी लगा ली है, प्रियंका ने सर गहराइयां भी तो है सर, तो बेचारा उम्मीद लगा के बैठा. ऐसे बहुत से लोग उम्मीद लगा के बैठे, रोक थोड़ी सकता है. तो अगर बुक में लिखा है दोनों इक्वेटर के बीच में, इक्वेटर पर ITCZ वेयर व्हिच इज द कन्वर्जेंस ऑफ टू, वहां पे भी एक फ्रंट बनता है, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. इट्स लाइक दीपिका पादुकोण ऑफरिंग यू, ये शादी की उम्मीद तुमसे भी है. रेहान, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो बनाने के लिए वो किया, बट दैट्स नॉट अ स्ट्रांग फ्रंट. डू यू अंडरस्टैंड दैट? How friends can form between two, however, friends can form between two contrasting air masses. Can I say more the contrast, stronger the front? Is it everything okay or not? Yes. एक बात बताइए, you are living in USA, okay, and you are living in Mumbai, USA. You are tired of only Goras around you, only Americans around you. You are from Punjab. True or not? And you see someone coming from Tamil Nadu, will you be very happy or not? भाई कोई तो इंडियन आया यार, मैं पक गया था. True or not? You would be interested. Why? Because you are living amongst Americans. So वहाँ पर contrast है आप में और उनमें. अब आप मुंबई में हो, yes or no? You are from Punjab, he is from Chennai. रोज देखते हो, सारे इंडियन ही देखते हो. Looking at a Punjab person, looking at Chennai, will he be so elated as he was in US? Yes or no? The Punjab fellow looks at him very rudely, dosa. The Chennai fellow looks at him, Bhatura. True or not? इधर क्या था? भाई Indian. True or not? So the greater the contrast you have, the stronger the front. अब मुंबई में सारे तो इंडियंस हैं यार, सारे इंडियंस हैं. It's a cosmopolitan place. Everywhere you're looking at all people from all places of the country. In fact, your biases will show up there. If you like people, जैसे मुंबई में we had that, like Mumbai for Mumbai Card movement. People from UP and Bihar, we saw, like there was a local protest by some political parties against that. हुआ कि नहीं हुआ? अब वही लोग जब बाहर मिलते हैं, they're very different. India, Pakistan. It continues like that. When you meet them, an Indian from Pakistan, Indian Pakistani in US, they will call themselves as Asians. Yes or no? खुशी इंडिया में रीजनलिज्म और बाहर में इंडियन. बिल्कुल ये सारे एनआरआई जो में अचानक नेशनलिज्म प्रकट होता है ना, नहीं देश के लिए कुछ करना. उधर बैठे वो पंकज उदास की गजल सुन रहे होते, चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद, और यहाँ पर आकर एकदम से. सो बाहर देशभक्ति बहुत सूझती है भैया, बाहर जितने भी हैं, नहीं मेरा देश, मेरी मिट्टी, सब अल्ताफ रजा याद आने लगता है. सर कॉन्ट्रास्ट इज टू मच स्ट्रांग, देन देयर विल बी चांसेस टू फॉर्म क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. बेटा प्रियंक, एक बात सुनो ना, इफ यू आर सेइंग कॉन्ट्रास्ट इज टू मच स्ट्रांग बिटवीन इंडियन एंड अमेरिकन, देयर इज अ चांस ऑफ मैरिज. ये क्या लॉजिक लगाया? कॉन्ट्रास्ट अगर दोनों में अलग अलग है तो अलग है, इसका मतलब ये थोड़ी कि बादल बनेंगे. फॉर क्लाउड्स टू फॉर्म तो वन हैज टू राइज, नो? ट्रू और नॉट? नहीं सर, मोमेंट वी सी डिफरेंट पीपल ना, एकदम से शादी हो जाए. व्हाई यू लिंकिंग द टू? एक बात बताओ, पर्सन फ्रॉम चेन्नई, पर्सन फ्रॉम पंजाब, not talking to each other, can they stand next to each other or not? Are they contrast or not? So warm air, cold air, yes, standing next to each other, nobody is trying to get into each other's territory. एक बात बताओ, कोई दिक्कत? Why cloud? तो अपनी जगह they standing next to each other. So contrast ज्यादा होगा तो बादल बनेंगे. बादल बनना is a different thing, no? Why you linking the two? If you have Netflix at home, that doesn't guarantee that you've seen all the series of Netflix. वो तो तभी होगा जब देखेगा. So it will cause fast upliftment of warm. अरे बाबा, जब अपलिफ्ट होगा तभी तो. Can't we say front where two air masses meet? Why it is say ITCZ? यार ये बढ़िया है सर, क्या हम उसको फ्रंट नहीं कह सकते? So your name is Manish. Why you Manish? Why not Manushya Manish? All of us are Manushya, no? So why call me Manish? सर उसको ITCZ क्यों कहते हैं? बताऊं क्या ITCZ क्यों कहते हैं? Because it is also the zone of convergence of intertropical wind. तो ये एक एडजेक्टिव है. I am a boy. I am an intelligent boy. सर ये इंटेलिजेंट बॉय क्यों कहते हैं सर? सिर्फ बॉय नहीं कह सकते, ये एडजेक्टिव है यार.
They are adding one more information to this that this is an area that is there. और मनीष तुम तो ऐसे ही प्रकट हो गए यार, बीच में क्लास में लेट आए हो, तब से ये समझाना चाह रहा हूँ, ये तो फ्रंट ही बहुत वीक है जिसको तुम फ्रंट कहना चाह रहे हो। मुझे पता है कई आते हैं ऐसे वाले पढ़ पढ़ाकर जो ये कहेंगे मैं तो तब से ये कह रहा हूँ, इतनी देर होगी कि भाई ये फ्रंट ही वीक होता है, इतनी देर से बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। आप बीच में प्रकट हुए और उसके बाद सर इसे फ्रंट क्यों नहीं कहते, इसको ITCZ क्यों कहते? भाई एडेड इन्फॉर्मेशन है, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? मतलब मैंने कहा ना यार, बहुत ज्यादा मैकेनिकल क्वेश्चंस आते हैं ऐसे जिनमें आपकी तरफ से कोई भी सोच नहीं लगती। इसी को यहाँ पर देखिए, आप थे नहीं यहाँ पर सर मनीष सर, ये देखिए अपना जो प्रश्न है ना सर, इसे फ्रंट क्यों नहीं कहते, मैं फ्रंट लिख चुका हूँ सर। फिर मैंने कहा सर इसको ITCZ भी कहा जाता है, क्योंकि दैट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब वो अलग बात है, अगर कोई क्वेश्चन पे अगर आपको टीचर टोक दे तो आप कहते हैं यार ये वाला मजा नहीं आया, चैनल चेंज कर, दूसरे वाले मास्टर में हो जाता है, खुशी खुशी बांटता है। वैसे हमारी क्लास में खुशी है ना, हाई खुशी, वो वाले तुम पर्सनल मत लेना उसको। कुछ बच्चे अपने नाम को पर्सनल ले जाते हैं। Do we get that? So ITCZ tells you something about what is happening at that area, और front की भी मैं आपको बता चुका हूँ, in true sense that will not be considered that front। आगे बढ़े। So two contrasting air masses जिसने भी कहा वो भी छोड़ देते हैं। When the vast size of air mass are considered, the zones that separate them are relatively narrow and shown as weather map। ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अभी सभी लोग को। Everyone, Earth, cold air, warm air, air masses है ना, will they be touching each other at some place? Will they be touching each other at some place? That will be called as a front। Everyone with me? So वहाँ पे बारिश होगी, बादल बनेंगे, nothing, that's just a front। They are standing next to each other। Is everyone okay? फिगर बना देता हूँ फिर से। Warm air standing next to cold air। What is this? This zone जो इन दोनों के बीच है ना, this zone is called frontal zone। चलेगा? It is not a line। It is not a line, it is an area। उसकी thickness होती है कुछ, ठीक है? And I want to tell you, if this is 30 degree, if this is 10 degree, तो यहाँ पर क्या होगा? Intermediate properties होंगी। 30 and 10, they are trying to interact और mix नहीं हो रहे। Remember, they don't mix easily। तो यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर 20 degrees होगा। Do you get that? क्योंकि यहाँ दोनों मिक्स करने की कोशिश करें, दोनों मिक्स करने की कोशिश करें, बट ये अपना कैरेक्टर बना के रखता है, ये अपना कैरेक्टर बना के रखता है, बट एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस देयर इज अ जोन एंड दैट जोन इज कॉल्ड द फ्रंटल जोन। इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? यहाँ तक क्लियर सब लोग? नाउ आई वांट टू टेल यू दैट दिस फ्रंटल जोन और फ्रंटल सरफेस इज नेवर वर्टिकल, इज नेवर वर्टिकल, इट इज ऑलवेज slanting and slanting on the side of the cold air। Can anyone tell me why? देखो अपलिफ्ट, कोई अपलिफ्ट नहीं, नो अपलिफ्ट। कोल्ड एयर इज हेवी, हेवी। एवरीवन एक बात बताइए, लेट्स टेक टू बॉक्सेस। आई हैव अ बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स, यस, आई पुट one box and another box next to each other। Two boxes are there, they are next to each other। Will they stand like this or not? Now this is not a box, this is not a box, this is a dense fluid, yes, and I put two fluids, one is a denser fluid and this thing, will they stand erect or will they bend? Denser will bend नीचे की तरफ, lighter will be ऊपर की तरफ। none of them is rising, वो थोड़ा सा bend हो जाता है, ठीक है? heavier air वो ऐसे रहती है और warmer air उसके contact में ऐसे रहती है। they are just standing next to each other, ठीक है? what is the front? front is this, foot is the front। what is this? frontal zone। it extends from ground to tropopause। it is a three-dimensional region। frontal zone is a three-dimensional region extending from ground to this thing with intermediate properties। get that? मनीष क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तब से मना कर रहा हूँ, कोई एयर राइज नहीं कर रही, जबरदस्ती लाइटर विल राइज क्यों कर रहे हैं जबरदस्ती? कोई दिक्कत नहीं, ये हैवी है अपनी जगह पर, वो अपनी जगह, कोई राइज नहीं कर रहा, अपनी जगह पर है, बट अपनी जगह तो ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? ले रहे हैं नहीं ले रहे? You have an iron box, and you have a pillow। you bring them close to each other। तो क्या आप देखते हैं पिलो जो है आयरन बॉक्स के ऊपर तक ज्यादा जा रहा होगा? ये सुनो, इज एनीवन ट्राइंग टू गो अप? एनीवन ट्राइंग टू? आयरन बॉक्स बल्कि नीचे रहेगा, आयरन बिकॉज इट इज हैवी। एंड हाउ वुड द पिलो मार के देख लो अभी उस पर, तो आप देखोगे पिलो उसके ऊपर तक चला जाएगा या नहीं जाएगा? इज एनीवन ट्राइंग टू गो अप? आप ला के देख लो, bring a pillow, a cushion and an iron box। iron box will always stay, the cushion अगर push करेंगे तो वो उसके ऊपर जाएगा, अगर push करेंगे, otherwise also it is in contact। कैसा ना? will it overlap it or not?
तो क्या कह रहा हूँ, वार्म एयर हैज अ टेंडेंसी टू ओवरलैप इट, बस इतनी सी बात कर रहा हूँ। जबरदस्ती राइज करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा, रट के बैठा हुआ राइज करेगा। अरे जब कोई धक्का देगा तब तो राइज करेगा, ट्रू और नॉट? यस, ये मेट्रो स्टेशन है, ये मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन में दिस फेलो इज सिटिंग, ये यहाँ पर बैठा हुआ है और तुम उसके ऊपर खड़े हुए हो, पीछे से धक्का लग रहा है, तुम उसके ऊपर चढ़े हुए हो कि नहीं? यस और नो? यू आर बेंट टुवर्ड्स दैट पर्सन, दैट्स ऑल। तो ये सिर्फ बेंडिंग है। वार्म एयर इज स्लाइटली बेंट लाइक दिस, और कोई ऊपर नहीं जा रहा है, कोई भी ऊपर नहीं जा रहा है। ऊपर बहुत जल्दी जाना है, सब रट के बैठा हुआ है, सर मेरे मास्टर जी ने बताया था, मैं पढ़ कर आया हूँ, ऊपर जाना है। दो एयर मास कांटेक्ट में हो सकते कि नहीं हो सकते? दे आर जस्ट इन कांटेक्ट, एंड व्हाट इज हैपनिंग? ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज आर देयर, 3D रीजन, it is having intermediate properties. कौन सी properties? इनका temperature is neither hot nor cool, intermediate. Their humidity is neither moist nor dry, intermediate. समझ में आ गया? This is a zone of intermixing, and intermixing is a slow process. Why slow? Why intermixing is slow? Because there is a poor conductor of heat. It requires time for that to happen. Is everyone okay with that? तो ये दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। अब ये पूरा का पूरा एरिया है, बट ऑन अ वेदर मैप मैंने ये बनाया कि नहीं? ये लाइन बनाई, ये लाइन तो एक लाइन है, ये जो बॉटम की जो लाइन होती है ना, इसको कहा जाता है फ्रंट। वेदर मैप पे ये पॉइंट शो किया जाता है। सो वेदर मैप इज द फुट, नीचे बेस, जहां पर कोल्ड एंड वार्म इज कमिंग इन कांटेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? वार्म एयर मास, कोल्ड एयर मास। अब इसका एक सिंबल होता है, द सिंबल ऑफ this front on a weather chart is like this: triangle, semicircle, triangle, semicircle। ये कौन सा फ्रंट है? इसको कहते हैं स्टेशनरी फ्रंट। नो एयर मास इज ट्राइंग टू इन्वेड इनटू ईच अदर्स टेरिटरी। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है ये एक तरफ कोल्ड एयर मास है, एक तरफ वार्म एयर मास। इज एवरीवन विद मी? ट्रू। LOC, इंडिया का LOC है। इधर कौन है? इंडियन फोर्सेस। इधर कौन है? पाकिस्तान फोर्सेस। यस, LOC is a stationary front. Is everyone okay? Is India trying to invade Pakistan? No. Is Pakistan trying to invade India? No. Stationary front. Two air masses standing next to each other. एक ऊपर जाएगा, एक नीचे, किसी को कुछ नहीं जाना, अपनी अपनी नेचर के हिसाब से। कोल्ड इज हेवियर, इट स्टेज देयर, वार्म इज देयर। डिड वी अंडरस्टैंड एवरीवन व्हाट इज स्टेशनरी फ्रंट? दो एयर मासेस एक दूसरे के साथ में खड़े हुए हैं। ठीक है, सही। दोनों एयर एक दूसरे के पास क्यों आ गई सर, ये बता दीजिए। ये इसलिए आ गई क्योंकि सब पोलर लो इज अ लो प्रेशर एरिया। तो लो प्रेशर क्या करता है? एयर मासेस का कन्वर्जेंस होता है कि नहीं? दोनों आकर खड़े हुए। इज एवरीवन ओके? दोनों आए, लो प्रेशर को छू कर दिया। ट्रू? तो दैट्स इट। अपने अपने एरिया में, नोबडी ट्राइंग टू एंटर। नाउ व्हाट हैपेंस इज एक बहुत तगड़ा लो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गया। सो द वार्म एयर इज पुल्ड ओवर हियर, कोल्ड एयर इज आल्सो पुल्ड ओवर हियर, बट कोल्ड एयर इज पुल्ड स्ट्रॉन्गर। सो अभी क्या हो रहा है एवरीवन? दिस इज स्टिल द सेम थिंग, द कोल्ड एयर which was like this moves further. Is everyone okay? ये cold air थोड़ा आगे move की। What was the warm air? Warm air was up to this place. Yes or no? Warm air originally was up to this place. Now the warm air is here. Warm air is here. Remember warm का ऐसा था, but जो excess था वो air कहाँ गया? वो ऊपर चला गया। Do we get that? Because someone is pushing. So cold air is trying to invade into the territory of warm air. When this happens, one of the air has to rise. जब invasion होगा, not otherwise. So यहाँ पर क्या था? पहले तो यहीं तक था cold, but cold had started moving. So weather map पर symbol change हो जाएगा, and this is the symbol. This is called cold front. जब मैंने आपसे कहा CP is moving towards ocean or tropical land, तो कौन सा एयर मास है? Cold. When it moves, वहां पे तो already MP है ना? MP is warmer. Yes or no? MP is warmer. ये ट्राई कर रहा है उसको इन्वेट करने में, तो कौन सा एयर मास बना? कौन सा फ्रंट बना? कोल्ड। एंड रिमेंबर दिस इज CT. CT इज वार्म, ये भी वार्म है। वार्म में कोल्ड आएगा, कोल्ड घुसने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हुआ? फ्रंट। व्हेन इट पुशेस द वार्म एयर, आइदर MP और CT विल बी पुश्ड अप। व्हेन इट इज पुश्ड अप, इट विल फॉर्म क्लाउड्स। इज एवरीवन ओके? और यहाँ पर रेन हो जाएगा। तो इतनी देर से जो कह रहे हैं सर वार्मर एयर इज लाइटर सर, इट विल राइज, पहले नहीं करेगी, पहले खड़ी भी हो सकती है। यस नो? डू वी गेट दैट? So ये यहाँ पर ऐसा होगा। Is everyone okay? So this is called cold front, and cold front में क्या होता है? Which one is the aggressor air mass? Cold air tries to enter and the warm air is pushed up almost vertically up because cold air moves like a wall.
दीवार की तरह आती है, एंड एज अ रिजल्ट वी फाइंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इन अ नैरो रीजन। समझ में आ गया? व्हाट इज फ्रंटोजेनेसिस? ये तो मैं आपको बता चुका हूं। फ्रंटोजेनेसिस कहां पर होता है? लो प्रेशर और हाई प्रेशर। फ्रंटोजेनेसिस लो प्रेशर और हाई प्रेशर कन्वर्जेंस वाले जोन में सर। likely to occur when the wind blows in such a way that the isotherms become packed along the edges of the intruding air masses. Convergence of ये जो isotherm है इसको छोड़ देना। Convergence of wind towards a point or a line causes frontogenesis। समझ में आ गया? Isotherms सर, but isotherm convergence सर प्लीज आपने बताया नहीं सर, ये बहुत गलत बात है। हो गया isotherm सारे कन्वर्ज। पहले क्या थे? 25, 20, 15, 10, 5 ऐसे थे ना। अब क्या हो गए? सारे एक जगह कन्वर्ज हो गए कि नहीं? Have all of them converged together? जब एक फ्रंट मूव करता है तो आइसोथर्म कन्वर्ज करते हैं। दैट इज व्हाट इट मेंट, बट यू डोंट नीड टू नो इट, इसलिए बोल दिया। तो आपके लिए फ्रंटोजेनेसिस कहां पर होता है? जहां पे लो प्रेशर होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस जहां पर होती है वहां पर क्या होगा? फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलिसिस? फ्रंटोलिसिस likely to occur when fronts move into regions of divergent air. This is why on crossing the subtropical high pressure region the front generally disappear. Remember 0 degrees 30 कौन सा बेल्ट होता है हमारा? हाई प्रेशर होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर एयर डाइवर्ज करती है, हाई पर तो एयर डाइवर्ज करती है। So this is not the zone where fronts will form. Fronts form where? Subpolar low, उधर form करेंगे। When contrasting air masses have convergent motion, what will happen? Frontogenesis or frontolysis? Convergent motion. Frontogenesis. The temperature contrast in the converging air is another most important prerequisite. तो उनमें contrast होने चाहिए तभी होगा। The convergence of air masses with different temperatures and different densities is conducive of frontogenesis. तो ज़्यादा temperature और density difference होगा तो frontogenesis will be good. If the temperature and densities are not very different, then the frontogenesis will be weak. Everyone, do you understand why did I say ITCZ or equatorial front is weak? If formed, it is weak. Why? Because the contrast is very low. वही बार-बार बात कर रहा हूँ। When the air masses move away from each other, तब क्या होगा? तब तो उनका कॉन्ट्रास्ट डिमिनिश हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है? डिसिपिएशन हो रहा है। फ्रंटोलिसिस इज हैपनिंग। इज एवरीवन ओके? टाइप्स ऑफ फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट कर लेंगे। क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर फ्रंट्स, व्हाट आर दिस टाइप्स? कैन वी डू दैट? व्हेन द सरफेस पोजीशन ऑफ द फ्रंट्स मूव सो दैट द वार्मर एयर इन्वेड्स, अगर वार्मर एयर घुसती है तो क्या बोलते हैं? वार्म फ्रंट। अगर कोल्डर एयर घुसती है तो क्या बोलते हैं? कोल्ड फ्रंट। यस, और फोर्थ इज ऑक्लूडेड, वो अभी नहीं बता रहा हूं, पहले वार्म और कोल्ड की बात। स्टेशनरी समझ में आ गया एवरीवन? स्टेशनरी, इज एवरीवन ओके विद स्टेशनरी? सो इंडिया पाकिस्तान एलओसी, India Pakistan LOC. What do we want? We want a stationary front or a belligerent front like Russia? Russia, can I say Russia broke the stationary front? Can I say Russian aggression, so it should be called as Russian front? Yes or no? So India LOC पे कोई front बनाना चाहता है other than stationary front? We are happy with that. Whatever is there, we don't want anything. So India is okay with this. उन्होंने कहा देखिए LOC है, respect it. Pakistan on the other hand keeps on sending infiltrators or not? पाकिस्तान आपने सुना infiltration करता है, तो one day we said ले अभी बताते हैं तुझको। yes, cold air decides to go into warm air, पुश करेगा। ये सुनो, पाकिस्तान कहाँ जाएगा? एक ही रास्ता है पाकिस्तान के पास, ऊपर जाना पड़ेगा। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ट्रू और नॉट? नहीं सर, ये तो हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम नहीं करना चाहते। डेफिनेटली वी आर कोल्ड एयर, वी आर स्टेबल, वी आर हैवी, वी वांट टू स्टे वेयर दे आर। पाकिस्तान आएगा तो ऊपर जाएगा। ये सब ट्रू, तो हम नहीं करना। लेकिन सर ये पाकिस्तान ट्राई करता रहता है ना, पाकिस्तान ट्राई करता रहता है। तो रिमेंबर पाकिस्तान इज वार्म एयर। अगर वो कोल्ड को कुछ करेगा भी तो पाकिस्तान के पास क्या रास्ता है? एक ही रास्ता है। दोनों केस में उड़ता पाकिस्तान। डू वी गेट दैट? एंड who will acquire territory in both the cases, or who will hold on to the territory? The heavier one. True or not? So this is, अगर इंडिया मूव करेगा इंडिया फ्रंट, पाकिस्तान मूव करेगा पाकिस्तान फ्रंट, बट who will hold the ground? The cold air. The cold air will hold the ground. समझ में आ गया? इन बोथ द केसेस वार्म एयर को ही उठना है, वार्म एयर को ही उठना है, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान जब हमारे पास इन्फिल्ट्रेट करता है, पूरे बॉर्डर को नहीं करता, क्या करता है? छोटा छोटा भेजता है। वो स्नोफॉल से पहले इधर से टेररिस्ट को घुसाएगा, इधर से, फिर हम लोग यहाँ पर क्या करें? हमारे फोर्सेस करें, यस, चुन चुन के एक एक को मारेंगे, इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, यस। बट जब इंडिया को करना होगा, इंडिया क्या करेगा? पूरा एक साथ मूव करेगा। ट्रू, हम चुप चुप के तो नहीं कर रहे, हम बोलते प्लीज बिहेव, सबको बता दिया, देखो ये टेरर ग्रुप है, ये यहाँ पर है, लश्कर ए तोयबा एंड एवरीथिंग, सब बता दिया, कोई नहीं मानना, चलो यार एक बार जरा घूम के आते हैं। ट्रू और नॉट? सर्जिकल स्ट्राइक। ट्रू। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, जब ये वार्म एयर कोशिश करता है ना राइज करने का, सो द कोल्ड एयर जस्ट बेंड्स अ लिटिल बिट एंड लेट्स द वार्म एयर राइज अप। सो जो स्लोप होता है ना वार्म फ्रंट का, वो बहुत जेंटल स्लोप होता है। इट इज अ जेंटल स्लोप, कैन यू सी दैट? और जो क्लाउड्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? इस पूरे एरिया में क्लाउड बनेंगे, वो ट्राई टू एंटर एंड ऑल दैट, निम्बो स्ट्रेटस, ऑल्टो स्ट्रेटस, ये बार-बार स्ट्रेटस लिख रहा हूं, तो स्ट्रेटस वाले क्लाउड लेस रेन,
बट इमेजिन इफ द एयर इज अनस्टेबल, रिमेंबर एयर भी तो अनस्टेबल होती है, उसको टेंडेंसी टू राइज होती है, तब क्या हो जाएगा, तब थोड़ा क्यूमुलोनिम्बस हो सकता है, बट जनरली द क्लाउड्स आर स्प्रेड ओवर अ ह्यूज डिस्टेंस. बट व्हेन कोल्ड एयर मूव्स, एवरीवन, कोल्ड एयर मूव्स, और क्या सिंबल है कोल्ड एयर का, रिमेंबर ट्रायंगल्स. कोल्ड एयर जब मूव करती है तो इट मूव्स डिसाइसिवली, इट्स स्लोप, कैन यू सी द एंगल इज वेरी स्टीप, सो द वार्म एयर इज ऑलमोस्ट वर्टिकली लिफ्टेड अप. तो यहाँ पे कौन से क्लाउड बनेंगे, क्यूमुलोनिम्बस. कहाँ बारिश हो जाएगी, यहीं पर बारिश होगी, इन अ नैरो रीजन द बारिश विल बी इन अ नैरो रीजन. इधर कितना है, इधर कैन यू सी द बारिश विल बी इन अ वाइडर रीजन. यस, light to moderate precipitation happens in which front, can you see Golu? So this is the symbol of warm front. अभी जो मैंने आपके लिए बनाया cold front बनाया था ना, when the cold air tries to enter, that is cold front. What is warm front? When the warm air tries to enter, and cold अपना hold कर रहा है ground, cold को कोई टेंशन नहीं. So when the warm air tries to enter, it will rise up, and that front will be called a warm front. दोनों के सिंबल समझ में आ गए सबको, सिंबल अलग है. Be it cold front, be it warm front, in both cases the warm air will rise, only the steepness of the front will be different. Cold front is like a vertical wall, whereas warm front is gentle, so the air has a tendency to enter and create clouds which are like this. तो किसके पास एक battery of parallel clouds होंगे, warm front will have battery of parallel clouds. Warm front will have a battery of parallel clouds with light to moderate rainfall. Battery of parallel clouds with light to moderate rainfall spread over a long distance. Whereas cold front is associated with towering cumulonimbus cloud, heavy to very heavy precipitation in a short distance. Did we get specific difference between the two? क्योंकि पूछा जाता है differentiate between the two air masses. They also ask us, tell us the climate associated with an air mass. So I'm keeping the exam in mind. I'm very clear कि advanced climatology में they will ask you many more things. Manish कह रहे warm front leads to frontogenesis. Manish, no front leads to frontogenesis first of all, because when you say front, so that means frontogenesis has already happened. Air masses lead to frontogenesis. उसे warm front lead, अरे front बन गया ना, warm front बोला तो front बन गया, तो ऐसा थोड़ी cold front से नहीं होगा. Warm air mass and cold air mass coming in contact cause front. If they are lying adjacent to each other, that's stationary. If one of them tries to invade, then that's a new kind of front. So warm front is warm air trying to invade warm front. Cold air can also do that. So both the air masses, first of all your question is wrong, warm front leads to frontogenesis, so the question is wrong because front is already created. Now comes air mass lead to frontogenesis. Yes, both air masses, warm front can also lead to frontogenesis, cold front can also lead to frontogenesis. Sir, we have been taught by this, that is why concept is little bit wrong. I don't know what do you mean by this. आपको समझ में आया कि air mass leads to formation of front और दोनों air mass front कर सकते हैं. You are asking me, can only Russia cause war? सुनिए, यूक्रेन भी कर सकता है, बैठे बैठे वो अटैक कर दे, मोल्दोविया पे अटैक कर दे, रोकोगे क्या? डू वी गेट दैट? सो ऐसा मुझे नहीं पता किसने क्या पढ़ा है और कहाँ पढ़ा है, आई डोंट इवन वांट टू नो. मैं अपना आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है. इफ यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज. वार्म फ्रंट लीड्स टू फ्रंटोलिसिस. अब ये जो है ना मनीष मानेगा नहीं, इसका पहला पूरा गलत कर चुका हूँ, ये अब उसका क्वेश्चन का वेरिएंट बना रहा है जबरदस्ती. मनीष समझ नहीं आ रही क्या अंग्रेजी? जब तुम लिख रहे हो वार्म फ्रंट तो यानी फ्रंट तो बन चुका है यार, कुछ तो कर ले भाई. तब से आया है, क्यों आया है? मैं तो पक्का बता रहा हूँ मनीष, कहीं से कर करा के आया है, जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ, क्यों कर रहा है? वार्म फ्रंट से फ्रंटोलिसिस होता है, कोल्ड से फ्रंटोजेनेसिस होता है. क्या नशा करते हो भाई, है ना? कहां से कुछ भी करके बट जबरदस्ती करनी है. अभी बताया, अच्छे से बताया कि भाई क्वेश्चन गलत है बच्चे. एयर मासेस लीड टू फ्रंट, और बताया ना वार्म फ्रंट लीड्स टू फ्रंटोजेनेसिस ना फ्रंटोलिसिस. कन्वर्जेंस लीड्स टू फ्रंटोजेनेसिस, डाइवर्जेंस लीड्स टू दिस. अब ये भी हो सकता है कि मनीष का इंटेंशन ही हो कि क्लास में मुझे करना है तमाशा, ये भी हो सकता है. तो बाकी वो मनीष की श्रद्धा है, बाकी लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्योंकि ये तो मैंने कहा ना बीच में आए और इन्होंने जो पूछना है वो पूछेंगे. और हो सकता है मनीष ने कई पीटी भी पार कर रखे, कई पीटी स्पेशलिस्ट भी होते हैं, है ना? तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समझ में आ रहा है. तो ऐसा कोई नहीं है कि कोल्ड फ्रंट लीड्स टू फ्रंटोजेनेसिस और उसका उल्टा लिख रहा है वार्म फ्रंट लीड्स टू फ्रंटोलिसिस. कहां से सेंटेंस रटा है? ये वो पीडीएफ लर्निंग का नुकसान है. एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग व्हेन एयर मासेस कम टुगेदर. हाँ मनीष आप कंफ्यूज ही रहेंगे, स्टिल कंफ्यूज ही रहेंगे, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता. मैं तो अभी आपका ही जवाब दिया, मैंने तो आप ही का जवाब दिया भाई. जब एयर मास पास में आते हैं तो फ्रंट बनता है. आप क्यों से कोल्ड फ्रंट कह रहे हैं, वार्म फ्रंट कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं भाई एयर मास जब एक दूसरे के साथ आके खड़े भी हो जाते हैं तो भी फ्रंट होता है. खैर आई वुड नॉट गेट इनटू दिस. रिक्वेस्ट है कि क्लासेस करें, एडवांस क्लाइमेटोलॉजी बिना क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक के नहीं होने वाला है. यहां तक क्लियर एवरीवन? ठीक है, अगर कोई डाउट है और कोई डाउट है तो पूछें. पूर्वी कह रही है सर 1 मिनट का ब्रेक. पूर्वी वैसे तो खत्म ही होने वाली क्लास. लेट अस कंटिन्यू विद दिस. सो एवरीवन यहां तक ठीक है? वार्म फ्रंट, जब वार्म एयर ट्राइज टू एंटर द कोल्ड वन, एंड जब कोल्ड एयर ट्राइज टू एंटर द वार्म वन, वो कोल्ड फ्रंट है. यहां तक क्लियर? इसमें मैंने कुछ भी टेक्निकल नहीं किया है.
वार्म एयर ट्राइंग टू एंटर वार्म फ्रंट कहां पर होगा? मैप में कहां पे दिखाई दे रहा है? एवरीवन कैन यू सी दैट? वार्म एयर तो यहां भी एंटर कर रही है, यहां पर भी एंटर कर रही है, यहां पर भी, यहां पर भी। सो वेयर डू आई शो फ्रंट? फ्रंट तो इतने सारे एरिया में, फ्रंट इज एक्सटेंडिंग टू अ ह्यूज एरिया और नॉट? सो मैप में कहां पे दिखाएं? मैप इज वेयर द फ्रंट टचेस ग्राउंड, इसलिए बताया था फ्रंट टचेस ग्राउंड, उसे मैप में दिखाया जाता है। एवरीवन ओके? चलिए पढ़ूं से। वार्म फ्रंट से टेम्परेचर क्या होता है? वार्म फ्रंट का मतलब विच एयर इज गोइंग टू कम? वार्म एयर। तो वो क्या करेगी? आफ्टर पैसेज टेम्परेचर बढ़ाएगी। प्रेसिपिटेशन कैसा होता है? लाइट रेन होता है, ओकेजनली शावर्स होता है, ठीक है। क्लाउड कौन से होते हैं? क्लाउड कौन से होते हैं? मैंने कहा बैटरी ऑफ क्लाउड, स्ट्रेटस हो सकता है, यस, क्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस, एक बैटरी ऑफ क्लाउड्स होता है। प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या होगा जब फ्रंट आता है? तो फ्रंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद विच प्रेशर? लो प्रेशर। व्हाई? कोई भी एक्टिव फ्रंट इज एसोसिएटेड विद लो प्रेशर। रिमेंबर दो प्रेशर बताए थे आपको, दो तरह से प्रेशर चेंज होता है, थर्मल एंड मैकेनिकल। इफ एन एयर राइजेस, व्हाट प्रेशर? नीचे वैक्यूम हो जाता है सर, लो प्रेशर। एंड इफ एन एयर सिंक्स, व्हाट प्रेशर? हाई प्रेशर। तो टेल मी फ्रंट में क्या होने के चांस ज्यादा है, राइज और सिंक? राइज, तो इसलिए क्या होगा? लो प्रेशर। डू वी गेट दैट? यहां तक क्लियर? अब ये ठंडी हवा आ रही है, एवरीवन कैन आई से आफ्टर सम टाइम द फ्रंट विल रीच हियर? कैन आई से आफ्टर सम टाइम द फ्रंट विल रीच हियर? आफ्टर सम टाइम द फ्रंट विल रीच हियर? आफ्टर सम टाइम द फ्रंट विल रीच हियर? होगा? What will it do to the temperature of this region? Decrease, so cool हो जाएगा। yes, आपको पता है अगर सीपी है तो यहाँ पर आएगा तो सीपी के हो जाएगा। ट्रू। नीचे वार्म है तो एयर क्या हो जाएगी? स्टेबल या अनस्टेबल? सर अनस्टेबल होगा ऐसे। कौन से क्लाउड है? ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल है तो कौन से क्लाउड है? क्यूमुलोनिम्बस। रेनफॉल कैसी है सर? हैवी और लो? हैवी, बट डिपेंड करता है सीजन पर। समर सीजन में हैवी होगी, क्यों? क्योंकि सीपी में तो मॉइस्चर कम होता है ना। समर सीजन में हैवी होगी, या अगर मैरी टाइम है, अगर ओशन की एयर है तब हैवी होगी। कैन आई से इट विल बी इन लिमिटेड एरिया, लेस एरिया में, छोटे एरिया में, नॉट इन अ ह्यूज एरिया, स्मॉल एरिया। इज एवरीवन ओके विद दिस? जस्ट इफ यू कैन रिलेट टू इट। हाँ सर, क्यूमुलोनिम्बस होगा, हैवी होगा, सीजन पे डिपेंड करेगा। इफ इट इज समर देन इट इज गोइंग टू बी मोर, इफ इट इज मैरी टाइम देन इट इज गोइंग टू बी मोर, एंड इट इज लिमिटेड एरिया, लेस एरिया में ज्यादा होने वाली है। इज एवरीवन विद मी ऑन दिस? यहाँ तक क्लियर? व्हाट विल हैपन टू द प्रेशर? जहां जहां ये पॉइंट जाएगा वहां वहां पे लो प्रेशर होगा, वेयर एवर द फ्रंट इज देयर, क्योंकि वो एयर को ऊपर भेज रहा है, लो प्रेशर। पढ़े? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कोल्ड, आपने भी यही बोला था। प्रेसिपिटेशन क्या होगा? थंडरस्टॉर्म इन समर। विंटर में क्या होगा? स्नो होगी सर। कौन सा क्लाउड होगा? क्यूमुलोनिम्बस। प्रेशर क्या होगा? फॉल देन राइज। पहले तो फॉल करेगा, जब पैसेज होगा तो प्रेशर विल फॉल, उसके बाद जब वो कोल्ड चला जाएगा। एक बात बताइए, जहां पर भी ये पॉइंट आएगा, दिस इज लो लो लो, बट एक्चुअली ये तो कोल्ड एयर है ना। वंस दिस पासेस, पीछे तो यू आर इन द कोल्ड, तो आपका प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। So initially pressure will fall. As the front is approaching you, what will happen to the pressure? It will fall. But after that, you will be in which air? You will be in which air? Cold air or warm air? Cold air. So cold air is high pressure. समझ में आ गया? पहले fall होगा, उसके बाद rise करेगा। Humidity कैसी होगी? Humidity will drop. Why? क्योंकि ठंडी हवा है। अगर समर है तो सर ज्यादा होगी, लेकिन वैसे लो हो जाएगा, particularly in winter. Everyone, आप चाहें तो ये टेबल रट सकते हैं, but if you visualize this, CPK से है, आपसे पूछे टेम्परेचर एसोसिएटेड और क्लाइमेट एसोसिएटेड विद कोल्ड फ्रंट, इज इट डिफिकल्ट टू से दैट इट ब्रिंग्स कोल्ड टेम्परेचर along with itself? Number one, it causes warm air to vertically rise up, so a lot of low pressure at the place where the air rises. But as cold air comes, the pressure again goes high. Is it okay? The clouds which are created are almost vertical cumulonimbus. Depending on the season, rain is decided. Summers, thunderstorm and more rain. Winters, less rain, often snowfall. Make sense? Pressure बता दिया, temperature बता दिया, precipitation बता दिया, over the area, done or not? If you can visualize it, ये काम हो जाएगा। अगर आप रट रहे हैं तो रट भी सकते हैं। ये वाला अभी आप छोड़ दें। जो विंड है ना, विंड में वेयरिंग और बैकिंग होता है, ये टेक्निकल एरिया है। आई वुड वांट, बता देंगे व्हाट इज वेयरिंग, बट आई वुड वांट ये छोड़ दीजिए। आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब एक बार साइक्लोन कर लेंगे तो प्रोबेबली तब हम इसकी भी बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट दिस आल्सो। इज एवरीवन ओके? कैन देयर बी अ फ्रंट विदाउट एनी एयर राइजिंग? कैन देयर बी अ फ्रंट विदाउट एनी एयर राइजिंग? यस और नो?
Yes. What would you call that front? The stationary front. Do you know the symbol of that front? Yes. Because two air came together, convergence happened. That is why front is formed. That process is called frontogenesis. Is everyone okay? Frontogenesis is aided by low pressure. Wherever low pressure is there frontogenesis will happen. Wherever high pressure is there, divergence happens. So front will dissipate. Front will dissipate. That is called frontolysis. Is everyone okay? Frontogenesis, frontolysis. समझ में आ गया? If I ask you which latitudinal belt will have frontogenesis, सोच के बताइए. अर्थ पर 7 है ना, कहाँ पर होगी? सर ITCZ and सब पोलर लो. ये जो हाई प्रेशर बोल रहा है, होप समझ रहे हो, सब पोलर लो. ये मिड लैटिट्यूड वाला दिमाग नहीं लगा रहा. ITCZ and सब पोलर लो, because those are the low pressure belts. Which of them will be a stronger front? ITCZ वाला है, सब पोलर लो वाला. तो सब पोलर लो वाला will be stronger. ITCZ is weaker. सबको क्लियर हो गया? Simple. Can you visualize that? Which places will be bad? Which belt will be bad for front formation but known for frontolysis? ये देखो ITCZ फिर कह रहा है, अभी तो फ्रंटोजेनेसिस में था और फिर उसको ITCZ. अभी कहाँ पर फ्रंटोलिसिस होगा? High pressure belt. Which belt is that? Subtropical high pressure. If I ask you which one causes frontogenesis, cyclone or anticyclone? Frontogenesis. The cyclone causes frontogenesis. Which one causes frontolysis? Cyclone or anticyclone? Anticyclone causes frontolysis. Which front is associated with heavy concentrated rainfall? Cold front is, sir, associated with heavy concentrated rainfall. Everyone. Okay. Front is associated with high pressure or low pressure? Front is associated with low pressure. The low pressure at the front is a thermal low or a mechanical low? Sir, it is a mechanical low. It is not because of temperature, it is because of pushing, vertical uplifting of. कर सकते हो, तुम्हें काफी कुछ आ रहा है यार. तो फिर से देखना वीडियो, क्लाइमेट भी समझ में आएगा. ठीक है? ओके, वन मोर. इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, LOC. ठीक है? सुना है आपने ऐसा? सुना है कि नहीं? बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज डुरैंड लाइन. Yes. So Pakistan is warm air. कभी इधर मारता है, कभी उधर कोशिश करता है. अफगानिस्तान मैटर्स में भी इंटरफेयर करता है, इंडिया में भी इंटरफेयर करता है. इंडिया इज हेवी, कोल्ड इधर पड़ा है. अफगानिस्तान इज ऑल्सो कूल. अफगानिस्तान डजंट वांट नॉनसेंस. दे सेड तालिबान का नाम बहुत खराब है, इस बार हम कुछ करेंगे. बट पाकिस्तान इज मेडलिंग देयर अफेयर्स आल्सो. ये सुनो. बट व्हेनेवर पाकिस्तान ट्राइज टू मेडल, व्हाट हैपेंस? वार्म एयर ट्राइज टू मेडल. कहां जाएगा ये? इनके पास एक ही रास्ता है. कौन से क्लाउड बनाता है? क्यूमुलोनिम्बस या स्ट्रेटस? स्प्रेड ओवर अ वाइडर एरिया. Which front is this? अगर पाकिस्तान ट्राई करता है तो वार्म फ्रंट. ये सब. अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान ट्राई करता है, फिर वही होता है, थोड़ा ऐसे करता है, कभी इधर कभी उधर. इस तालिबान कॉल अप इंडिया. तालिबान कॉल अप इंडिया. They said we want better relations with India. Do you also want better relations with us? India said yes, we want better relations, but you know, we have always engaged with Afghanistan. We have looked at your welfare, but then the fact is when Taliban forces came, आप लोगों ने हमारी embassy में मारा पीटा, सब कुछ हमारे प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया and all that. So Afghanistan says, sorry, we are a new Taliban and we want better relations. Interested? India said yes, we are always interested, no problem. Good things, we are there. But you have, you know, your friends China and Pakistan. They said we know China is that global साहूकार, वो हमारा बेवकूफ बना रहा है, तो चाइना को तो हम टाइट कर लेंगे जब चाहिए होगा. Yes, but we are tired of this Pakistan fellow. अपना तो समझता नहीं है, इधर आके हमें आइडिया देता है. So India said no problem. दोस्ती का हाथ बढ़ाओ. Yes, हम LOC की जगह डुरैंड लाइन अपना बॉर्डर बनाना चाहते हैं. So the cold air mass decides to move. धम धम धम. आओ हाथ बढ़ाएं. What happened to Pakistan? Which front? Cold front, cold front, cold front, cold front, cold front. Who's the aggressor? Cold front. Yes or no? What happened to Pakistan? ये वाला हिस्सा up, 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 up. अब पाकिस्तान किधर है? If 3 air masses are there, 1, 2, 3. If 3 air masses are there and one air mass invades another air mass to the extent that it totally displaces the central air mass and touches the आगे वाला air mass. एक air mass को आपने बिल्कुल ही ग्राउंड से डिटैच कर दिया. That is called occluded front. तो जो हमारा फ्रंट हमारा और अफगानिस्तान का बना, that will be called as occluded front.
जो हमारा पाकिस्तान से बना था वो क्या था? कोल्ड फ्रंट. But when you are going to meet another one and removing the central one, so जो new front between these two new partners is there, this is occluded. और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल भी वही है जो स्टेशनरी का था, बट इसमें ये दोनों सेम साइड पे आ जाएंगे. द ट्राइंगल एंड द हेमिस्फीयर्स और सेमी सर्कल्स विल कम लाइक दिस. इज एवरीवन ओके? occluded front समझ में आ गया? डोंट थिंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान. मैं तो जस्ट बता रहा था कि एयर मासेस ऐसे भी चल सकते हैं. बीच वाले एयर को अगर आप टोटली उड़ा दोगे, फिर फ्रंटल इन्वर्जन तो नॉर्मल में भी हो जाता है. Frontal inversion can happen normally also. So Naidu says, please repeat. Naidu, there are balloons. There are balloons. Yes. And you are playing with them. Yes. So balloon is thrown at you. What will happen? Will you go in the air or the balloon will go in air when the balloon strikes you? So the balloon will bounce back. It will go in air. Yes or no? True? Is everyone okay? Balloon is light. You are here. Correct? Now what you do is you move away from here and you bring a slanting table and start pushing it. What will happen to the balloons when they strike this table? They will go up, they will bounce off, yes or no? And if you move further, what will happen? The balloons will shift here. True or not? The balloons will be pushed or not? Everyone? You do this with a water wiper. When you have a wiper, do you push water away or not? But imagine, Naidu, if there is a wall over here and you keep on pushing and finally your table touches the wall, what will happen to the balloons? All the balloons. Now they are not in contact with this. All of them have been pushed up or not? So in this process, what was happening was cold air was moving. Cold air was moving and it was displacing the warm air. It keeps on moving to a point that it comes across another air mass, third air mass, which is there. And the second air mass, the whole of the second air mass has been pinched off, uplifted. That air mass is thrown out and two of them have formed the new front. पहले तो cold front था. This is a new front and that is called occluded front. Are you with me on this? समझ में आया? Whatever your imagination, whatever your questions are, all are welcome, Pucho. You can ask me any silly question right now. Please ask whatever you want to. Everyone, which air? Cold air. Which air? Cool air. Air mass 1, air mass 2, air mass 3. Front 1, front 2. Front 1 is a cold front. So how will it look like? Front 2 is a warm front. How will it look like? Is everyone okay? Can you appreciate this diagram? Everyone, can you appreciate this diagram? So why is this cold? Why is this warm? Because here the warm air seems to be the one which is invading. Here cold is the one which seems to be invading. Is everyone okay? Is everyone okay? Now I want to tell you, whenever the cold front moves, thunderstorm only will come in summer season. If yes or not, how? मनीष क्या पूछ रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? मनीष कोई टॉपिक हो रहा है? थंडरस्टॉर्म सिर्फ समर में ही आएगा? अगर हाँ या नहीं तो क्यों? कहाँ हो मनीष? Which air has more water? ये सारी चीजें अभी जो समर बताया. कैसे आना कैसे हुआ मनीष क्लास में? somebody said कि एडवांस क्लाइमेटोलॉजी पहुंच जाओ, कुछ तो पढ़ाएगा. What made you? We are talking about this. ये समझा रहे हैं. जब बात कर रहे थे तब that was climate associated with front. वो तब की बात थी. Climate associated with front. उसमें हमने कहा कि ठंडी हवा अगर समर्स में है तो उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो इसलिए वहां पर ज्यादा स्टॉर्म होंगे. और फिर क्लाउड भी बताया कहां पर थंडर स्टॉर्म होने के चांस है, जहां पे क्यूमुलोनिम्बस होगा. तो पिछली क्लासेस आपने देखी नहीं बच्चे, और आप इस क्लास में भी काफी फ्रेगमेंटेड हैं. जो टॉपिक चल रहा है उससे एकदम भटक रहे हैं. सो प्लीज डोंट बी इन अ हरी. आराम से इस क्लास को फिर देख लेना, बट पहले प्लीज एयर मास की क्लास संडे को हुई है वो कर लीजिए. आपने एयर मास नहीं किए हैं शायद. एवरीवन, can you see this situation? Is everyone okay with this situation? Naidu, okay with this situation? Now we're going to the next situation in which air mass 1 will overtake number 2. मनीष उसको दोबारा देखिए. Air mass 1 will overtake number 2 and the distance between 1 and 3 will reduce. Can you see this? What happened to the middle air? What happened to the middle air? That has been pushed up. So
एक तरफ कौन सा है, विच एयर मास, कोल्ड एयर मास, वर्ल्ड में भी दिखा रहा हूं, दिस इज कोल्ड एयर मास, कैन आई से Cp एयर इज देयर, कैन आई से दिस इज Ct एयर, तो Cp इज कमिंग एंड Ct एयर, और ये क्या है, Mt, is everyone okay, Mt is cool, is everyone okay, Cp is cold and this one is warm, समझ में आ गया सबको, what is this Ct air mass, Cp air mass, Mt ले लो या Mp ले लो, जो भी लेना है ले लो, Mp ले लेते हैं इसको, Mp भी कर सकते हैं इसको, Mp मैरीटाइम पोलर, क्योंकि ये 30 डिग्रीज है, so this is Cp Mp and is everyone okay, now what are the symbols, can you see the symbols, warm air, can I say Ct is being pushed up in both cases, इधर भी Ct ऊपर जा रही है, इधर भी Ct ऊपर जाएगा, because in either the front, whichever is the front, always the warm has to go up, is everyone okay, now this Cp moves faster, everyone please pay attention, ये ऐसे आगे 1 2 and 3, so ये वाला जो area everyone which I have shaded, this no longer is a warm front, why sir, because this is where it was touching, now it is touching here, इतना area जो है वो occlude हो गया, can you see this, what is the symbol, in future what will happen, और आगे जाएगा तो यहाँ पर भी occlusion हो जाएगा, and then what will happen, true, in the process what happened to the warm air, warm air गई कहाँ, वो तो खत्म हो गई ना, warm air is lost, then what do we have here, Cp and Mp, दो ही air रह गए, only 2 airs are left or not, is everyone okay, this process whereby one air mass is totally uplifted by 2 air masses is called occlusion, और आगे जाएगा, रुकेगा तो नहीं ना, पहले तो टच कर रहा था, first it was touching, now it will move further, and remember what will happen to the cool air, out of the two which is warmer, relatively warm, ये भी ऊपर जाएगा, इसको भी खाता जाएगा, true, can you see that much part, what happened to that extra cool, where did it go, वो सब ऊपर चला गया, can you see this, ये लंबा होता जा रहा है, what is increasing, this one is increasing, and which one is getting shorter, ये, is everyone okay, अच्छा एक बात बताइए, which air has been pushed up, warm air, where, warm air has been pushed up or not, and cold air has entered where, cold close to the ground and this aloft, what has happened effectively what has happened everyone, देखो इन्वर्जन वालों भूल जाओ, इन्वर्जन तो हो ही रही है, इफेक्टिवली क्या हो रहा है, गर्म हवा कोल्ड में चली गई, कोल्ड एयर हो गया, ग्लोबल हीट एक्सचेंज इज हैपनिंग, बताया था सारी सर्कुलेशन इज बिकॉज ऑफ दिस, do we get that or not, stages of formation of occluded front, stages मिल गए 1 2 3, how will we show it, very simple, पहले एक air mass and this is diagram number 1, second diagram number 2, third diagram number 3, what is moving, cold, what happened to the warm, पहले इधर था warm has been pushed up, now warm is here, totally up, is everyone okay, now everyone I also want to add one more thing, in summers have you seen next to the road, on the side of the road where there is dust, have you seen छोटा सा dust devil, slight conical dust things rising, why is that eddy, why is it spiraling, what causes it to turn, low pressure will cause say convergence, no, convergence and convection, the air must rise, I understand, the wind is coming, Deepshika, it is coming and it must rise, why is it turning, it twisting क्यों हो रहा है, why is it twisting, what causes twisting, air, you know all the forces we have talked about, sir, Coriolis causes it to twist, good, and how high are these dust storms, if I ask you in centimeters, वो बनता है गायब हो जाता, how high, have you observed this or not, sometimes these small little eddies, whirlwinds are created, yes, in the summer season on the roads, कभी घर में भी बन जाता है छोटा सा, 4 to 5 meters सर्वेश पर, 4 meters, do you know 4 meters is 2 story, तो पैर पे ऐसे नीचे बनता है यार, बाजू में बनता है, कह रहा 4 to 5 मीटर, एक 20 सेंटीमीटर इतना हो गया, बहुत है यार, ये सब, is everyone okay, you remember that or not, am I joking, have you seen such things or not, ये छोटा सा एडी बनता है, बनता है, have you seen, not huge, वो 4 to 5 मीटर नहीं बनता भाई, 4 to 5 मीटर उठाना बहुत बड़ी चीज होती है, वो तो देख के आप डर जाओगे सामने, वो तो फिर टॉर्नेडो लगने लगेगा, yes, प्लेग्राउंड में फुटबॉल यू आर प्लेइंग, यू नो मिट्टी, क्रिकेट में भी साइड में थोड़ा सा हो जाता है, you'll see the dust devils, we call them dust devils, छोटा बन जाता है, मधुकर बोल रहा ग्रेविटी, मधुकर छोड़ दे फिजिक्स यार, now tell me, this is the entire air mass that is sent up, why will it go vertically up, why will it not start spiraling, possible,
In the mid latitudes 30 to 60 degrees, we see such spirals created which are pushed by westerlies, which are nothing but the occluded air, और इनको हम कहते हैं temperate cyclones. बन गया cyclone. What is the cyclone? Occluded air which is going up and spiraling. These are not the cyclones which hit India. India is not 30 to 60. We are 0 to 30. These are extra tropical cyclones. समझ में आ गया? चलिए तो समझाना पड़ेगा. I'll explain you. But do you understand how is it created? That is why we call these cyclones are also called as frontal cyclones. So to come to frontal cyclones, should my student know what is the front? And front पे occluded front पता होना चाहिए. कोल्ड टाइप ऑक्लूजन, वार्म टाइप ऑक्लूजन, उसकी चिंता नहीं करनी है. साइक्लोन की बात करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं. साइक्लोन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. एंड हाउ इज द साइक्लोन फॉर्म्ड. टेम्परेट साइक्लोन्स की बात करते हैं. टेम्परेट तो ट्रॉपिकल साइक्लोन है. दिस इज हाउ अ टेम्परेट साइक्लोन इज फॉर्म्ड. टेम्परेट साइक्लोन इज कोल्ड एयर सीपी ट्राइंग टू एंटर वार्म एयर एमटी और सीटी एंड एमपी. और यहाँ पर क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? occlusion. Air is rising. And how is it rising? And when the air rises, what is the pressure? ये साइक्लोन ऐसा बनता है. वेदर मैप पर ये साइक्लोन ऐसा दिखाई देता है. इन रियलिटी व्हाट इज इट? दिस इज मूविंग. मनीष बोल रहे हैं सर लाइट रेन एक्सपीरियंस इन इंडिया ड्यू टू ऑक्लूजन और ऑक्लूडेड फ्रंट. पहली बात तो मनीष को अनरिलेटेड पूछना है, बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मनीष एंड हिज क्वेश्चंस. मनीष एक बात बताना चाहता हूँ. इंडिया डज नॉट गेट occluded fronts. India is a part of air mass. Frontal weather happens in 30 to 60 degrees. Most of India lies outside this. So India is impacted by frontal weather only in Kashmir or northwest India due to western disturbance. So जो आपने जबरदस्ती लगाया अभी, सर इंडिया में लाइट रेन सर ऑक्लूजन से होती है क्या? इंडिया इज सिटी एमटी. हमारे यहाँ पर फ्रंटल नहीं होता है. हमारे यहाँ कन्वर्जेंस कन्वेक्शनल रेन हो रहा है. फ्रंटल वहां पर होता है. हम पूरा का पूरा कौन से एयर मास में है? ट्रॉपिकल एयर मास में. ठीक है. हमारे यहाँ साइक्लोन क्या होता है वो बता देंगे आपको. इंडियन क्लाइमेट इज लार्जली नॉन फ्रंटल. लार्जली बोला, थोड़ा सा पार्ट है. ठीक है. बाकी मनीष आपकी समझ आया. अच्छी बात, आपने क्वेश्चन पूछा, हमने पूरे क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देकर बता दिया. सर इंडिया में जो लाइट रेन होती है सर वो क्या ऑक्लूजन से होती है? नहीं बच्चे, गंगा का पानी इवेपोरेट होता है, शाम को ठंडा होकर बरस जाता है. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद ऑक्लूजन. अगर आपने मेरी संडे की क्लास अटेंड की होगी तो आपको बताया था. यहाँ भी दिखा रहा हूँ, यहाँ बनता है फ्रंटल वेदर. ये देख रहे हैं आप. इंडिया इससे बच गया. सर कैसे बच गया? सर कश्मीर में. हाँ कश्मीर मान लिया. समझ में आ गया. रिक्वेस्ट है कि इसको समझे, जो बताया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑक्लूजन क्या है? बट क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा, सो आई एक्सप्लेन ऑल्सो. टुमारो आई टेक यू इनटू साइक्लोन्स. आई हैव अ रिक्वेस्ट. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट आर एयर मासेस? एयर मास डायनामिज्म, उनका नॉमेनक्लेचर सबको समझ में आ गया. सीपीकेएस सीपीकेयू. मनीष आप थे भी नहीं उस पार्ट में, भी आप लेट आए थे. कर लीजिए, एक नहीं 2 बार कर लीजिए. और क्वेश्चन रेलिवेंट होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है. आपने जो क्वेश्चन पूछे मैंने सबका आंसर किया, बट इतना रैंडमनेस वो दिखाता है कि क्लास में थोड़ी कंसंट्रेशन कम है. बाकी आप उसे रिपीट कर लें तो दैट विल हेल्प. इज एवरीवन ओके? क्लियर? आई थिंक इट वाज अ टेक्निकल टॉपिक, बट आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू डाइजेस्ट. आई कैन नॉट गो वेरी फास्ट विद एडवांस क्लाइमेटोलॉजी. एंड इमेजिन इफ आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस बिफोर, बिना कुछ बताए तो फंस जाते आप लोग. कल साइक्लोन करेंगे. वी विल टेक साइक्लोन टुमारो. Okay, that cyclone and jet streams will be done tomorrow. And last class we will go towards climatic classification. So thank you. Bye. आज इवनिंग में क्लास है ऑफ जीएस. इन्वायरोमेटिक्स आई एम नॉट टेकिंग टुडे. सो टुडे इन्वायरोमेटिक्स हैज बीन कैंसिल्ड. कल हो जाएगा. सर प्लीज आल्सो टेल वंस मोर व्हिच यू ड्रॉ टेम्परेट साइक्लोन. पूरा टेम्परेट साइक्लोन कल बताएंगे. द होल लाइफ साइकिल ऑफ अ टेम्परेट साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, द डिफरेंसेस बिटवीन देम, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू टुमारो. अभी हम स्लाइड नंबर 34 पर हैं. ये 72 स्लाइड्स हैं, तो सब है, पूरे घर के बदल डालेंगे. चिंता मत करो, सब बनाएंगे. ठीक है. सी टुमारो 11:30. बाय.